اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ویسے کام کچھ مشکل تو نہیں ہوتے، بلا وجہ ہی سب ڈراتے رہتے ہیں۔ کمرے کی بیڈ شیٹ جھاڑتے ہوئے وہ بڑبڑائی، کنزا بیٹی، باہر سے ابا جی کی آواز آئی، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے یا کہاں ہے لگی ہوئی؟ دھواں؟ آگ؟ اوہ بینگن! اس نے ایک چیخ ماری اور کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ بینگن جل کر خاک ہو چکے تھے۔ یا الہی، اس کو بے حد رونا آیا۔ اب کیا کروں؟ مرے مرے قدموں سے چلتی وہ باہر نکلی۔ ابا جی نے بے ساختہ مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ پک گئے بینگن؟ وہ مسکرائے، کچھ زیادہ ہی۔ اب کیا ہوگا ابا جی، دوبارہ سے پکاؤں؟ میں یہاں ہر وقت ملازمہ کی طرح لگی رہتی ہوں، مجھے ہر حال میں اپنی امی کے ہاں جانا ہے۔ کنزا بھی ضد پر اڑ گئی، اور برہان بھائی کی شادی تک وہیں رہنا ہے۔ اوکے جاؤ، بے نیازی سے بولا۔ آپ چھوڑنے نہیں جائیں گے؟ میرے پاس فضولیات کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں نہ تمہیں چھوڑنے جاؤں گا نہ لینے آؤں گا، شوق سے جاؤ، اور جب تک مرضی ہو وہاں رہو، جب دل بھر جائے سیر و تفریح سے تو خود ہی آ جانا۔ اس نے مزید انتظار نہیں کیا، اپنے کپڑے بیگ میں بھرے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر آ گئی۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی پیارا سا ناولٹ آپ کے لیے، جس کا نام ہے وہی ایک ہے مزاج آشنا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناولٹ کی طرف۔ اس کا رنگ سانولا ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور تصویر کونے میں پھینک دی۔ کوئی نہیں سانولا۔ ہما نے لپک کر تصویر اٹھائی اور دوبارہ اس کے آگے جما دی۔ لڑکوں کا رنگ گورا بھجنگ بالکل اچھا نہیں لگتا، تھوڑی گندمی رنگت ہی جچتی ہے۔ گورا بھجنگ؟ اسے ہنسی آئی۔ کالے بھجنگ سے تو گورا بھجنگ ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسا کون سا کالا رنگ ہے؟ اچھی خوبصورت رنگت ہے لڑکے کی۔ تم مطمئن نہیں ہو تو بہت سی فیئر اینڈ لولیاں دے دیں گے جہیز میں تمہیں۔ فیئر اینڈ لولیاں؟ وہ زور سے ہنستی۔ فیئر اینڈ لولی کی بہت سی ٹیوبیں۔ اب تو خوش؟ ہما نے منہ بنایا۔ یہ بہانہ نہیں چلنے کا۔ اس کی ناک کیوں طوطے کی چونچ جیسی ہے؟ اس نے دوبارہ تصویر کو عدسے کی مدد سے دیکھا۔ طوطے کی چونچ جیسی؟ غضب خدا کا کنزا احمد، کچھ تو خوف خدا کرو، ہم اچھی خاصی ستوا ناک ہے، یہ بہانہ بھی ریجیکٹ۔ اوفو، اچھا غور سے دیکھو، آنکھیں کچھ بھینگی ہیں، ہے نا؟ میں تھپڑ لگا دوں گی ایمان سے۔ ہما نے واقعی ہاتھ اوپر کیا۔ ظاہر ہے سائڈ پوز میں تو ایسی ہی لگیں گی آنکھیں۔ ایمان سے ہما، یہ دیکھو، عدسے میں کچھ نقص ہے ضرور آنکھوں میں۔ اس نے دادا ابا کا عدسہ تصویر کے آگے کر کے دکھایا۔ میں توڑ دوں گی عدسہ، ہما نے دھمکی دی۔ دادا ابا سر توڑ دیں گے تمہارا، بس کہہ دیا میں نے، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، بتا دو امی کو۔ یا الہی، ہما نے سر اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ میں کہاں جاؤں؟ آنٹی کہتی ہیں یہ شادی سے کرنی ہوگی، بتا دو جا کر۔ اور یہ محترمہ کہتی ہیں مجھے نہیں کرنی شادی، بتا دو جا کر۔ آخر میں کیا بتاؤں، کس کو بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ اس کے انداز پر کنزا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اندر کرو یہ پیلے دانت، زہر لگ رہی ہو۔ ہما نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ پچھلے 3 ماہ میں تیسرا پروپوزل ہے جو تم ریجیکٹ کر رہی ہو۔ پہلے ہمدانی والے رشتے سے تم نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا کہ وہ امریکہ جائے گا اور تم پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہو۔ چلو مان لی تمہاری بات۔ دوسری دفعہ سیدوں والے رشتے سے تم نے کہا کہ ان کے ہاں بےحد سخت رسم و رواج ہیں، تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ وہ بھی تمہاری وجہ سے منع کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ سید رضا شاہ کتنا پسند کرتا تھا تمہیں، تمہاری محبت میں کتنی مشکلوں سے اپنے گھر والوں کو منا کر لایا تھا، تم نے دل توڑ دیا بیچارے کا۔ اب یہ اتنا اچھا رشتہ ہے، اسے بھی ٹھکرا رہی ہو، آخر کیوں؟ کیا برائی ہے حمزہ میں؟ شکل اچھی، جاب اچھی، گھرانہ اچھا، عادتیں بھی سونائے غضب کی ہیں محترم کی۔ کیوں انکار کر رہی ہو تم؟ مجھے جواب چاہیے ملاٹ۔ ہما نے سائڈ ٹیبل پر مکہ مارا۔ بات یہ ہے ہما کہ میں واقعی جان کر بہانے تراش رہی ہوں، میں واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں میری جان، سچ سچ بتا دو۔ دیکھو ہما، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف 22 سال ہے۔ ماشاء اللہ، کم بخت، میں 2 سال چھوٹی ہوں تجھ سے، اور 2 سال قبل سے منگنی شدہ ہوں، اور 2 سال بعد میری شادی ہو جائے گی۔ میں تو ابھی راضی ہوں۔ مرتضیٰ ہی نہیں مانتا۔ شرم کر، اس نے ہما کی ایک مکہ جڑا۔
اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ جو دل کی بات وہ میں نے بتا دی۔ ہاں تو میں بھی تو اپنے دل کی بات ہی بتا رہی ہوں۔ دیکھو ہما، میں نے بھی 3 مہینے پہلے BA کیا ہے، ابھی تو پڑھائی کی قید ختم ہوئی ہے۔ میں کم از کم 3-4 سال تک آزادی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اپنی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے جا کے کام کا دل چاہا تو کر لیا، ورنہ امی کی ڈانٹ سن لی۔ اب ماں اور ساس کی ڈانٹ میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ ہاں آگے پھوٹیے۔ آگے کیا پھوٹوں؟ پھر ایمان سے مجھے تو کوئی کام نہیں آتا، نہ سلائی، نہ کڑھائی، نہ صفائی، مجھے تو برتن تک صحیح سے دھونا نہیں آتے۔ 1 ہفتے میں ہی ساس ہاتھ پکڑ کر چھوڑنے آ جائے گی کہ رکھو اپنی نالائق بیٹی کو اپنے پاس۔ سچ ہما، مجھے تو جھرجھری آتی ہے سوچ کر۔ اس نے سچ مچ میں جھرجھری لی۔ سب سے پہلے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی متوقع ساس کو فوت ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لہٰذا ساس کا خوف دل سے نکال دیجیے۔ دوسری بات یہ کہ نندے بھی آپ کی صرف 2 عدد ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ ایک دبئی میں رہتی ہے اور دوسری لاہور میں۔ آپ کے گھر میں صرف 1 عدد سسر پائے جاتے ہیں، ان کے علاوہ گھر میں یا تو آپ ہوں گی یا کبھی کبھی حمزہ صاحب۔ ہما نے اسے مکمل معلومات فراہم کی۔ اوف خدایا، مزید خطرناک صورت، یعنی گھر کا سارا کام، ساری دیکھ بھال میرے ذمے، ماضیوں سے کام کروانا ایک عذاب، خود کام کرنا اس سے بڑا عذاب۔ نہ بابا نہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پھر اور تم کیا چاہتی ہو؟ ہما ضد چوک گئی، یعنی تمہیں ساسوں نندوں کے ہونے نہ ہونے دونوں صورتوں پر اعتراض ہے؟ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ عیش ہو سکتے ہیں۔ اس نے پاؤں پسارے۔ امی سے کہنا کہ ابھی 1-2 سال ٹھہر جائے، میں ذرا عیش کر لوں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کچھ کام کاج گھرداری سیکھ لوں، پھر سوچیں گے اس بارے میں۔ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارے عیش۔ ہما نے اٹھ کر قمیض جھاڑی۔ اب اگر آنٹی نے تمہیں سمجھانے کا کام میرے ذمہ سونپا، یا تو میں خودکشی کر لوں گی یا تمہیں قتل کر دوں گی۔ گھر جا رہی ہو؟ ہاں، یہ کارٹون بھی لیتی جاؤ۔ ہما نے مڑ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں تصویر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرانا پڑا۔ بڑی خبیث و کنزا، آدھا برس ہے۔ وہ مسکرا دی۔ اور جو اس نے سوچا تھا کہ طوفان ٹل گیا تو یہ اس کی نیری خوش فہمی تھی۔ 2 دن سے امی کی خاموشی کا جو مطلب وہ سمجھ رہی تھی وہ غلط تھا۔ 2 دن بعد جب اپیا اپنے 3 عدد کارٹون جیسے بچوں کے ساتھ لدی پھندی وارد ہوئیں تو اس کی تمام امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ توقع کے عین مطابق رات کا کھانا کھا کر وہ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں پورے 15 دن کے لیے آئی ہوں، انہوں نے کہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ انجان بنی رہی۔ میں تو خود کب سے بلا رہی تھی آپ کو۔ کل سے بازار کے چکر لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہ گھبرائی۔ ارے بھائی، امی نے آرڈر دے دیا ہے 15 دن میں تمہارا جہیز بنانے کا۔ اتنا شارٹ نوٹس، میرے تو پاؤں گھس جائیں گے۔ اپیا پلیز۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے تو کہلوایا تھا امی کو ابھی کچھ سال رک جائیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے بنو؟ وہ چمکی۔ تم نے کہہ دیا اور وہ رک گئیں۔ بس اب یہ بچپنا چھوڑو اور ہوش کی دوا کرو۔ ابھی تو میں اتنی چھوٹی ہوں اپیا، اس نے احتجاج کیا۔ لو اور سنو۔ ارے بی بی، ہم ایک بچے کی والدہ تھے اس عمر میں، بہت مرضی چلا لی، بہت خود سری کر لی، بس اب وہی ہوگا جو تمہارے بڑے چاہیں گے۔ میرا خیال ہے لڑکے کی بہنیں 1-2 دن میں آئیں گی، بس تبھی تاریخ رکھ لی جائے گی۔ انہوں نے حسب عادت فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا، جس سے وہ بے حد گھبراتی تھی کیونکہ اس کے بعد کسی کی نہیں سنتی تھی۔ اپیا کچھ تو سوچیں۔ وہ گڑ گڑائی۔ مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا۔ جب سر پہ پڑے گی تو سب آ جائے گا۔ اور جو اتنی لوٹھا کی لوٹھا تم ہو گئیں، اب تک سوئی پکڑنا نہیں سیکھا تم نے، تو 1-2 سال میں سیکھ بھی کیا لوگی؟ وہ تو شکر کرو کہ ان گنوں پر بھی اتنا اچھا رشتہ ملتا ہے، گنوا دیا تو سر پکڑ کے رہو گی۔ پھر تم چاہتے کیا ہو؟ بھائی بیچارہ دیار غیر میں بیٹھا ہے، کب سے کہلوا رہا ہے کہ کنزا کی شادی کریں تو میں مطمئن ہو کر واپس آؤں، کہ اب کوئی بوجھ نہیں ہے، اسے بھی تو گھر بسانا ہے۔ 3 سال ہو گئے اس کی منگنی کو، ہینا بیچاری کب سے بیٹھی ہے اس کے نام پر۔ اب تم رخصت ہو تو اس کو لائیں اس گھر میں۔ یہی خواہش تھی تمہارے بھائی کی کہ پہلے تینوں بہنوں کی شادی کروں گا، پھر اپنا گھر بساؤں گا۔ اب ہماری بھی تو 19 سال کی عمر میں ہی کر دی گئی تھی شادی، ہم نے تو کوئی واویلا کھڑا نہیں کیا۔ ہم بھی یہی نخرے دکھاتے تو بھائی بیچارہ تو وہیں بوڑھا ہو جاتا۔ بس کہہ دیا میں نے، خبردار جو کوئی عذر تراشا اور بہانہ کھڑا، کل سے کمر کس لو۔ ہاں۔ انہوں نے لمبی چوڑی تقریر جھاڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ قسمت خراب ہے کنزا بی بی، اس نے سوچا اور دھم سے لیٹ گئی۔ ٹھیک 5 دن بعد اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اس کی دونوں نندیں بھائی کی شادی کرانے اپنی اپنی سسرال سے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب لوگ جن میں اپیا، نمو، امی اور بڑی خالہ شامل تھے
ड्राइंग रूम में इन लोगों से मज़ीद बातें तय कर रहे थे। उस वक्त ये शख्स अमीर हमज़ा मेरे सामने आ जाए तो कत्ल कर दूँ इसका। इसने दांत पीसे। अच्छा, जल्दी दुआ कबूल होगी आपकी। अपनी बहनों को लेने इन्होंने ही आना है। हुमा ने सेब के साथ इंसाफ करते हुए कहा। हुमा प्लीज़, मेरी जगह तुम कर लो ना शादी, इसने इल्तिजा की। और मुर्तज़ा को तेरे रहमो करम पर छोड़ दूँ, इसने आंखें निकाली। माफ़ कर दो बाबा, खुद ही निपटो अपने अमीर हमज़ा से। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो हुमा लपक कर खिड़की में जा खड़ी हुई। सच किन्सा, वही है। वो पुरजोश हुई। तो मैं क्या करूं? इसने मुंह बिगाड़ा। अरे बड़ा ही डैशिंग है ये तो, तस्वीर से कहीं अच्छा। फिर क्या ख्याल है? वो मुस्कुराई। छोड़ दे ये मुर्तज़ा का ख्याल। लानत हो जलील तुझ पर। हुमा ने दांत पीसे। कुफरान नेमत कर रही है। हाँ, इसने करवट बदली। जल्दी आ किन्सा, देख तो एक नज़र। मुझे शौक़ नहीं रात को डरावने ख्वाब देखने का। कपड़ों का कम्बिनेशन भी अच्छा है। अरे दादा अब्बा के कपड़ों का कम्बिनेशन, सफ़ेद तंग पाजामा और सफ़ेद कुर्ता। अरे बुद्धू, मैं कह रही हूँ दादा अब्बा आए हैं गेट पर, हाथ मिला रहे हैं दोनों। कैसी जोड़ी लग रही है। इसने शरारत से पेन दांतों में दबाया। वंडरफुल, हुमा बेध्यानी में बोली। किन्जा खिलखिला कर हंस दी। बस गंवा दिया ना इतना अच्छा मौका। हुमा मायूस होकर खिड़की से लौट आई। दादा अब्बा अंदर ले गए हैं। कोई बात नहीं, इसने चुमकारा। तेरा तो कोई पर्दा नहीं है ना, जाकर ड्राइंग रूम की खिड़की में टंग जा। नहीं खैर, मैं तो तेरी वजह से कह रही थी। मैं कोई आशिक नहीं होगी हमज़ा साहब पर। हो जा, इसने लापरवाही से कहा। सिर्फ मेरे आशिक होने से क्या होता है? हुमा ने सर्द आह भरी। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई तो बात बने। अच्छा, इसे बेतरह हंसी आई। इजहार करके तो देखिए हजूर, क्या ख़बर लग ही जाए आग इस तरफ भी। पर कैसे? इसने लम्हे भर को सोचा। आ गई तरकीब। फ़ोन पर। वेरी गुड। हुमा उछली। मौसूफ़ का आजमाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। बस तो फिर आज ही हो जाए धमाका। और सच बता रही हूँ हुमा, मोहतरम आशिक मिजाज निकले फिर मैं मर जाऊँगी, लेकिन ये शादी नहीं करूँगी। देखा जाएगा। इसने कंधे उचकाए। रात को खाने के बाद हुमा की तरफ आके, नंबर लाई? हाँ। बड़ी मुश्किलों से अम्मी के पर्स से मिला है नंबर। इसने उंगलियों में दबा कार्ड दिखाया। हुमा ने टेलीफोन सेट लाउंज से लाकर पहले ही कमरे में रखा हुआ था। चलो जल्दी मिलाओ नंबर। हुमा ने इसे घूरा। तुझे किस बात की जल्दी है? बात तो मुझे करनी है। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं बात करूँगी? वो बिगड़ी। हुमा ने नंबर मिलाया तो इसने जल्दी से रिसीवर पर सर लगाया। तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया। क्या? हेलो। बड़ी गंभीर आवाज़ थी। हेलो, क्या कर रहे थे आप? हुमा को रॉन्ग नंबर पर बात शुरू करने में महारत हासिल थी। जी, पढ़ रहा था। दूसरी तरफ मौजूद शख्स को कुछ हैरानी हुई। किससे बात करनी है? आपसे। मुझसे? कीजिए। इतने स्मार्ट हैं आप। दिन भर में कितनी लड़कियों के फ़ोन आते हैं। जी बीबी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। मेरा वज़न 95 किलोग्राम है। लड़कियाँ तो क्या, मुझे तो बूढ़ियाँ भी फ़ोन नहीं करती। जी। हुमा के हाथ से रिसीवर छोटा। किन्जा ने जल्दी से रिसीवर उठाकर दोबारा इसके कान से लगाया। आप कौन साहब बात कर रहे हैं? हुमा ने थूक निकला। गज़नवी अर्ज़ कर रहा हूँ। हुमा ने खट से रिसीवर रखा। चंद लम्हे वो सांस रोके एक दूसरे को देखती रहीं। दोनों ने एक मुश्तरका कहकहा लगाया। किन्जा, तेरे तो ससुर साहब इतने शौक़ हैं। अमीर हमज़ा साहब का तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। चल बकवास मत कर। वो हंसी। फिर मिला नंबर। अब के तमीज़ से बात करना, छोड़ते स्मार्टनेस का राज मत मालूम करना। दोनों फिर से खी करने लगी। हुमा ने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाकर आवाज़ की तारीफ़ की। किन्जा ने इसके ज़ोर से चुटकी भरी। मार डाला जलील। इसके मुंह से बेख्तियार निकला। जी। दूसरी तरफ हमज़ा को धचका लगा। क्या फरमाया मोहतरमा? जी, मैंने कहा हमज़ा साहब को बुलाते हैं। हुमा की और को समझ में ना आया। मोहतरमा, आपके कान कमज़ोर मालूम होते हैं। मैं हमज़ा ही बात कर रहा हूँ। फरमाइए। वो क्या कर रहे थे आप? रो रहा था अपनी किस्मत को। और कुछ? इंतहाई काटदार लहजा था। उफ़, ईमान से इतने खौफनाक लहजे में बात ना करें। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। नहायत छिछोरी लड़की हैं आप और नहायत वाहियात बातें कर रही हैं। उफ़ खुदाया, इतना तेज़ मिजाज कैसे गुजारा होगा आपका आपकी बीवी के साथ? हुमा ने हंसी रोकी।
तो उनकी वकील हैं आप? दूसरी तरफ से पूछा गया। गालबन आप वही लड़की हैं जो आज सुबह खिड़की से पटर पटर घूर रही थी। बाय द वे, क्या आपकी ये दोस्त भी इतनी ही फजूल हैं? हुमा ने झट रिसीवर रखा। हाय किंजा, ईमान से पहचान लिए गए हम तो। इसने धड़ धड़ करते दिल पर हाथ रखा। अब क्या होगा हुमा? किंजा इससे ज़्यादा पीली पड़ गई। क्या सोचेगा हमारे बारे में? अब बता तो रहा था क्या सोचता है। फजूल, छिछोरी, वाहियात। तौबा तौबा, इसने कानों को हाथ लगाया। शादी से पहले तेरा किरदार तो मशकूक हो गया किंजा। गोली मार किरदार को। इसे रोना आने लगा। अगर इसने अम्मी या अब्बू से कह दिया तो पता है फांसी लग जाएगी मुझे। अरे तो क्यों डर रही है पागल? हुमा ने इसे तसल्ली दी। मुकर जाना साफ, कह देना तुम्हें तो नंबर ही नहीं पता, फ़ोन कहाँ से करूँगी। फिर तुम तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस मामले में, कोई शक नहीं करेगा तुम पर इसे तो पक्का यकीन हो गया है ना, तो उन्हें रिसीवर क्यों रख दिया घबरा कर? इनकार क्यों नहीं किया इसकी बात पर? बस दिल में चोर था ना, इसने इतराफ़ किया। खैर अब गलती तो हो ही गई है, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर मुझे कौन सी परवाह है, इसने लापरवाही से कहा। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज़। वैसे बेटे से तो बाप का मिजाज अच्छा है। वो माँ हंसी। फिर क्या ख्याल है? इसने शरारत से आंखें घुमाई। मेरी सौतेली सास किंजा, आई विल शूट यू। इसकी बात मुँह में ही थी कि हुमा ने इस पर तकिया दे मारा। किंजा तुम्हारे काम बन गए होंगे, जाकर ले आना तीनों सूट। अम्मी ने इसे हदायत दी। और जो दुपट्टे रंगने को दिए थे वो भी ले आना। निमरा ने भी लब कुशाई की। क्या मतलब है, मैं अकेली जाऊंगी क्या? अपिया नहीं जाएंगी? गुड्डू को बुखार है, तुम हुमा के साथ चली जाओ ना। ईमान से मैं तो पागल हो गई हूँ बाजार के चक्कर लगा लगा कर। निमरा ने बुरी सी शक्ल बनाई तो वो हंस दी। अच्छा बाबा मत जाओ, तुम्हारी शादी में मैंने भी अपिया के साथ मिलकर बहुत काम किया था, ज़्यादा एहसान मत जताओ। चली जाऊंगी मैं हुमा के साथ। उफ किंजा, 3 सूट ही तो रहते हैं, बाकी सारी शॉपिंग सारा काम तो मुकम्मल कर दिया है तुम्हारा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की ख्वारी और है बस। अपिया हस्बे आदत तेज़ तेज़ बोलती हुई कमरे में दाखिल हुई। अच्छा अपिया, हो लूँगी 2 दिन ख्वार। वो हंसी। अच्छा अम्मी, मैं ज़रा हुमा को बता दूँ कि वो तैयार है, शाम को चले जाएंगे हम दोनों। जाओ। अम्मी बैठी किसी दुपट्टे में बेल टाँक रही थी। शाम को वो दोनों बाजार चली आईं। किंजा, ए किंजा। वो खड़ी दुकानदार को कोई हदायत दे रही थी कि हुमा ने इसका बाजू हिलाया। हाँ क्या है? झुंझला कर मुड़ी। वो देख, हमज़ा साहब खड़े हैं। कहाँ? वो बौखलाई। अरे वो देख, स्मार्ट सी लड़की के साथ जिसने पीले कपड़े पहने। कहाँ? वो टापती ही रह गई। लानत हो तेरे दीदों पर, एवी इतने बड़े हैं। हुमा झुंझलाई। चले गए वो अंदर ज्वेलर शॉप में। तुमने अच्छी तरह देखा था हुमा? कोई लड़की थी साथ में? हाँ सच, हमज़ा भाई ही थे। और वाकई बड़ी प्यारी लड़की थी, गोरी चिट्टी लंबी सी। अच्छा चुप करो, मुझे जेलसी हो रही है। उफ़ो, हुमा ने उफ़ो को लंबा खींचा। चलो ना हुमा, देखते हैं कहीं तुम्हें गलत फहमी तो नहीं हुई। वो इसका हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान से निकल आई। ज्वेलर शॉप के शीशे के दरवाजे से इसने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशा टेंटेड था। इसे मायूसी हुई। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। हमज़ा ने बाहर कदम रखा। किंजा ने जल्दी से पीठ मोड़ ली। हाय हुमा, देख तो नहीं लिया हमें? मुझे क्या पता, मैं तो लड़की को देख रही थी, ईमान से बड़ी क्यूट है। अच्छा मुड़कर देख, जा रहे हैं क्या? हुमा ने गर्दन मोड़ी। हाँ जा तो रहे हैं, चल ना, देखते हैं कहाँ जाते हैं दोनों। इसने जल्दी से बाहर आकर रिक्शा को इशारा किया। किंजा, पागल हो गई हो क्या? हुमा घबरा गई। पागलपन की क्या बात है? वो झुंझलाई। मेरी ज़िंदगी का मामला है भाई साहब, इस सफ़ेद कार के पीछे चलना है। इसने रिक्शा वाले को मुखातिब किया। लो भला, इसमें पीछा करने की क्या बात है? हुमा को सख्त गुस्सा आ रहा था। 15 दिन तो हैं शादी में, पूछ लेना था वैसे ही। सफ़ेद कार रेस्टोरेंट के आगे रुकी तो रिक्शा वाले ने बड़ा कमाल दिखाया और रिक्शा ले जाकर बिल्कुल पीछे खड़ा कर दिया। जी बीबी जी, पहुंचा दिया ना टाइम पर? फ़खरिया मुस्कुराया। उफ खुदाया, इससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। कार को लॉक करता हमज़ा बड़े गौर से इसे देख रहा था। चलो बुतरो, हुमा ने इसे कोहनी मारी। दोनों ने उतर कर किराया दिया। आप हमज़ा साहब हैं ना? हुमा ने बड़ी इत्तफाकिया मुलाकात का तासुल देना चाहा। पिछले आधे घंटे से यही पहचानने के लिए पीछा कर रही थी आप? बड़ा सर्द लहजा था। लेकिन हम तो आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो सूप पीने आए हैं। हुमा ने जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की। अच्छा, फिर मुझे लगा होगा। इसने लहजा बेतासुर किया।
चलें भाभी, साथ खड़ी लड़की से मुखातिब हुआ। इस तमाम अरसे में इसने एक मर्तबा भी निगाह उठाकर किंजा पर नहीं डाली थी। कौन है ये लोग? वो मुस्कुराई। जान जाएंगी कुछ दिनों में। एक निगाह गलत किंजा पर डालता वो मुड़ गया। लड़की ने इसका साथ दिया। फ़ोन वाली बेइज्जती काफ़ी नहीं थी क्या? हुमा ने गुस्सा उतारा। जलील कर दिया ईमान से तूने। मैंने क्या किया है? वो झुंझलाई। मैंने रिक्शा वाले से ये तो नहीं कहा था, बिल्कुल बगल में ले जाकर उतारते। मेरा क्या है, शादी तो तेरी होगी इन हजरत से। उफ़, ये मिजाज। खैर नहीं तेरी किंजा, मेरी जूती डलती है। वो भिन्न आई। चल वापस। लेकिन सूप, वो समझ जाएंगे हमने झूठ बोला था। समझते रहें, मैं डलती नहीं हूँ, चलो वापस। वो इसका हाथ खींच कर ले आई। शाम को वो सबके साथ बरामदे में बैठी चाय पी रही थी जब निम्रा ने बेल बजने पर फ़ोन उठाया। हेलो जी, किससे बात करनी है? किंजा से। कौन साहब? ओह, आखिर में इसने मायने खेज ओ की तो किंजा के कान खड़े हुए। पिया तुम्हारा फ़ोन है। निम्रा प्यार से इसे पिया कहती थी। किसका है? वो हकलाई। खुद सुन लो। वो मुस्कुराती। तब वो डरते डरते फ़ोन तक आई। निम्रा के अंदाज ने उसे बहुत कुछ समझा दिया था। हेलो, इसने फंसी फंसी आवाज़ निकाली। मिस किंजा अहमद? दूसरी जानिब से तस्दीक की गई। जी बोल रही हूँ। इसने हमज़ा की आवाज़ पहचानी। कुछ शर्मो हया है आपको? अचानक ही गोलाबारी शुरू हो गई। जी। पास बैठी बज़ाहिर बेनियाज बनी निम्रा और अपिया के कान इसकी जेब में थे। वो जानती थी। यानी मेरे यकीन के ऐन मुताबिक छिछोरेपन में आप अपनी दोस्त की ऐन टक्कर की हैं। सख्त गुस्से में था। जी शायद। वो अपनी सफाई में कुछ कहने की पोजीशन में थी, न लड़ने की। वट, यानी ढिठाई मज़ीद एक सिफ्त है? जी जी यकीनन। इसने दिल ही दिल में इसे 1000 सलावातें सुनाई। ओफ़ खुदाया मिस किंजा अहमद, यकीनन जल्द ही मुझ पर एक बहुत बड़ा अजाब आपकी सूरत में नाजिल होने वाला है। कान खोल कर सुन लीजिए। जासूसी मेरे नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मैं क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ, कहाँ जाता हूँ, ये सब जानने का इख्तियार आपको शादी के बाद भी हरगिज़ नहीं मिलेगा। कुजा ये कि अभी से रिक्शों में पीछा? कोई शराफत है ये? जी नहीं, इसने हौले से कहा। हो भी नहीं सकती। आइंदा के लिए आप अलर्ट रहें। अंडरस्टैंड? यस सर। इसे अपने केमिस्ट्री के सर याद आके, जिनका तकिया कलाम ये था। दूसरी जानिब से खट से रिसीवर रखा गया। मरी मरी चाल चलती अपनी जगह पर आकर बैठ गई। हमज़ा था ना? अपिया ने तस्दीक चाहिए। जी। जब ही तो सुर्ख है कानों तक। निम्रा मुस्कुराई। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। इसने घबरा कर चाय का कप उठाया। हमें कौन बताएगा भाई? निम्रा ने शौक़ी से सर्द आह भरी। लेकिन हम भी मज़मून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये लाल चेहरा यूं ही तो नहीं हो रहा। तौहीन के एहसास से इसका चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ और ठंडी बर्फ़ चाय इसने एक ही घूंट में हलक से उतार ली। मैं हुमा की तरफ जा रही हूँ। उफ़ किंजा, 3 दिन हैं तुम्हारे मायूं बैठने में। अब टिको यहीं घर पर। अपिया भिन्न आई। अच्छी अपिया, एक दीवार ही तो है बीच में। सच दरवाजे से नहीं जाऊँगी। अरे बाबा, तुम दरवाजे से ही जाओ। टांग वांग तोड़वा बैठी तो पड़ जाएगा ना अच्छा भला मामला खटाई में। अपिया चाय के बर्तन उठाती खड़ी हुई। अच्छा है किसी तरह तो ये बला टले। वो जलती हुई वहाँ से चली आई। क्या हुआ? ये 12 क्यों बज रहे हैं मुखड़े मुबारक पर? हुमा सदा से इसकी मिजाज आशना। हुमा, मैं ख़ुदकुशी करने के बारे में संजीदगी से सोच रही हूँ। हाय सच? हुमा खुशी से उछली। कसम खा मेरी। हुमा की बच्ची। इसने हस्बे आदत तकिया बतौर हथियार इस्तेमाल किया। हुआ क्या है? वो खिलखिलाई। हमज़ा साहब ने कोई तीर फेंका है अपने तरकश से निकाल कर। तब इसने अपनी तरफ से मज़ीद चंद जुमलों के इजाफे के साथ सारी सूरत हाल बताई। अगर अपिया और निम्रा वानी होती तो अच्छी भली खातिर तवाज़ो तो मैं भी कर सकती थी मौसूफ़ की। ना, ऐसी गलती मत करना। हुमा ने इसे समझाया। अब इतने से दिन हैं तेरी शादी में, कोई बात जड़ पकड़ गई तो बहुत बुरा होगा। होता रहे बुरा, मेरी बला से कोई शराफत है? ऐसे बात करते हैं होने वाली बीवी से। बस जाने दो किंसा। हुमा संजीदा हुई। बहुत हंसी मजाक हो गया, बहुत हिमाकतें हो गई। ये सारी ज़िंदगी के मामले हैं, इनमें यूँ बेहतियाती मत बरतो। तुम्हें अब सारी उम्र गुजारनी है हमज़ा के साथ। अभी से यूँ दिलों में बुग़्ज़ अनाद रखा तो बाद में क्या होगा? और मैं मशवरा दूँ, रात को फ़ोन करके एक बार सॉरी कर लो इससे। जो जो गलत फहमियाँ हों वो दूर कर दो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना रहे। माई फुट, भाड़ में जाए तुम्हारा मशवरा। बात सुनो हुमा,
میں پہلے سے ہی شادی کی مخالف تھی، اب مزید ہو چکی ہوں، جس تعلق کی بنیاد میں ہی صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنی پڑیں۔ اس کی مضبوطی کوئی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ حمزہ صاحب قابل برداشت ہوئے تو میں رہوں گی ان کے ساتھ، ورنہ میرا اپنا گھر برا نہیں ہے رہنے کے لیے۔ کنزا بات تو سنو، ہما آوازیں دیتی رہ گئی۔ مائی گاڈ، کس قدر بے وقوف بچکانہ ذہنیت کی مالک ہے یہ لڑکی۔ اس نے سر تھام دیا۔ ہما، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس نے آئینے میں اپنے سراپے پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی۔ اچھی؟ صرف اچھی؟ ارے بہت اچھی، بلکہ حسین ترین لگ رہی ہو۔ اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ شکریہ، کنزا مسکرائی۔ آخر دوست ہو نا؟ گولڈن نہایت بھاری حسین کام کے سرخ غرارہ سوٹ میں وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سنو کنزا، ہما نے سرگوشی کی، ڈر تو نہیں لگ رہا تمہیں؟ ڈر؟ کیوں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، حال سے 2-3 دفعہ فون آ چکا ہے آنٹی کا۔ کیا کرتے، بیوٹی پارلر میں ہی اتنی دیر لگ گئی۔ سنو کنزا، ذرا سر جھکا کر بیٹھنا، شرمائی دلہنیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، اپیا نے ہدایت دی۔ لو بھلا، اب شرم آئے نہ آئے کرتے رہو ایکٹنگ۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی۔ غصہ تو اسے اپیا پر آ رہا تھا، جو ہر چند لمحوں بعد آ کر اس کے سٹائل میں کچھ ترمیم کر دیتی تھیں۔ گھونگھٹ ذرا سا نکال لو، یوں آنکھیں مت مٹکاؤ، ہاتھ یوں آگے پرس پر رکھو، کھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر چند منٹ بعد وہ آ کر کوئی نیا حکم سنا جاتی۔ خدا خدا کر کے کھانا آیا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اپیا نے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اس کے منہ میں دینا شروع کیے۔ ہما نے کونے میں کھڑے ہو کر اس کی نتھ اٹھانے کا فریضہ انجام دیا۔ اپیا، میں خود کھا لوں گی، اس نے احتجاج کیا۔ مجھے خبر ہے تمہاری، ابھی لپسٹک کا ستیہ ناس کر دو گی، خاموشی سے کھاؤ میرے ہاتھ سے۔ اتنا مہنگا میک اپ کرایا ہے، خبر ہے نا؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ اس کی جان جل کے رہ گئی۔ غصے میں تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ بس کھا لیا؟ انہیں حیرانی ہوئی۔ جی؟ کھانے کے بعد امیر حمزہ کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا کیا؟ دھڑا دھڑ لائٹیں چمکنے لگی۔ یا الہی، اس نے آنکھوں پر چڑھا کر گہرا سانس لیا۔ دلہن بننا کس قدر مشکل کام ہے۔ چند لمحوں میں ہما آ کر اس پر جھکی۔ اپیا کہہ رہی ہیں زیادہ آنکھیں مت مٹکاؤ، تصویر اور مووی بن رہی ہے، بری شکلیں مت بناؤ۔ قسم سے ہما، اس نے سرگوشی کی۔ لگتا ہے میری ساس کی وفات سے چند لمحے قبل اپیا سے ملاقات ہو گئی تھی، اپنی ساری انسٹرکشنز کے ساتھ اپیا کے سپرد کر گئی ہیں۔ ہر چند کے سے یقین تھا۔ اس نے آواز انتہائی مدھم رکھی تھی، پھر بھی اسے شبہ ہوا۔ برابر بیٹھے حمزہ نے تل ملا کر پہلو بدلا تھا۔ سن تو نہیں لیا؟ اس نے ڈر کر سوچا، پھر اس کے یوں پہلو بدلنے کا کم از کم اتنا اثر اس پر ہوا۔ گردن جھکا کر بڑے انہماک سے حمزہ کے سلیم شاہی جوتوں کا مشاہدہ کرتی رہی۔ توقیت کا اس کی رخصتی نہ ہو گئی۔ اس کی دونوں نندوں نے اسے لا کر بڑے آراستہ و پیراستہ قسم کے کمرے میں پہنچا دیا۔ گھبرا تو نہیں رہی؟ اس کی بڑی نند کلثوم نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں تو، اس نے کمال ہمت سے جواب دیا۔ سنیے، اس کی نند جانے لگی تو اس نے ان کے دوپٹے کا پلو پکڑا۔ ہاں کہو، مڑ کر پیار سے مسکرائی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ اچھا، امی لوگوں نے کھانا بھیجوایا ہے نا، تھوڑا سا لا دیں؟ سچ کلثوم آپا، بڑی بھوک لگی ہے۔ اچھا لاتی ہوں، وہ مسکراتی۔ تھوڑی دیر میں بڑے مزے سے بیٹھی ہر شے سے انصاف کر رہی تھی، تبھی دروازہ کھول کر امیر حمزہ اندر داخل ہوا۔ مصیبت، سراسر مصیبت۔ اس کی بڑبڑاہٹ کافی بلند تھی۔ کنزا نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا، واپس پلیٹ پر جھک گئی۔ یعنی اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑھ جائیں گے۔ جانے وہ اس کو سنا رہا تھا، یہ واقعی خود سے مخاطب تھا۔ سنیے، فرنی کھائیں گے؟ اس نے اچانک حمزہ کو مخاطب کیا۔ جی نہیں، مجھے میٹھا پسند نہیں، اس نے بے رخی سے جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ کر موزے اتارنے لگا۔ ظاہر ہے، وہ مسکرائی، تبھی یہ حال ہے۔ کچھ فرمایا آپ نے؟ نہیں تو، اس نے جلدی سے کہا۔ اس نے اٹھ کر جوتے کونے میں رکھے اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ او ہاں، راستے میں سے کچھ یاد آیا، یہ لیجیے۔ واپس موڑ کر اس نے ایک ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ انجان بنی۔ وہ کیا کہتے ہیں، رو دکھائی یا منہ دکھائی؟
اس نے کان کھجائے، بڑی مشکلوں سے اپنی بے ساختہ ہنسی کو منہ پر ہاتھ رکھ کر روک پائی۔ ڈبیا اس کے ہاتھ میں تھما کر مزے سے پلٹ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس نے کھول کر دیکھا، بے حد خوبصورت جھمکیاں تھیں۔ شکر ہے، ورنہ میں تو چھوٹے موٹے بم کی توقع کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور اپنے زیورات اتارنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس کی دونوں نندوں نے رخت سفر باندھا۔ لو بھائی کنزا بی بی، تمہارا گھر تمہارے حوالے۔ انہوں نے چابیاں اس کی ہتھیلی پر دھری۔ پر یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ گھر کی مالکن کو نہیں دوں گی تو اور کس کو دوں گی؟ اچھا جان، اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا، اور ابا جان اور میرے نالائق سے بھائی کا بھی بڑا خوار ہوا ہے بیچارہ امی کی وفات کے بعد سے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی اور ٹیکسی میں جا بیٹھی۔ سریا، اس کی چھوٹی نند اور ان کے شوہر بھی جا چکے تھے۔ حمزہ صبح ان دونوں سے مل کر گیا تھا۔ گھر کی مالکن ان کے چلے جانے کے بعد اس نے پریشانی سے دہرایا، اوف خدایا، کتنا بھاری لفظ ہے، ہتھوڑے کی طرح سے آ کر لگتا ہے دماغ پر۔ اتنے بڑے سے گھر کی مالکن ہونے کا تصور ہی جان لیوا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی اور اندر آ گئی۔ دوسرے دن سے اسے احساس ہوا اس پر کتنی بڑی ذمہ داری آ کر گری ہے۔ سویرے سویرے یوں ہی اس کی آنکھ کھلی تو مندی مندی آنکھوں سے اس نے ایک سایہ سا دیکھا۔ ذرا غور سے دیکھا، معلوم ہوا کہ وہ حمزہ تھا جو فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ ماشاء اللہ، وہ ذرا سا بڑبڑائی، کروٹ بدل کر پھر غافل ہو گئی۔ کنزا، اے کنزا! تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد حمزہ نے اس کا شانہ ہلایا۔ تمام عرصے میں شاید پہلی بار اس نے کنزا کو یوں نام لے کر مخاطب کیا تھا۔ کیا ہے؟ بڑی پیاری سی نیند ٹوٹنے پر اسے بے حد افسوس ہوا۔ دیکھو مجھے جانا ہے، جلدی سے اٹھ کر ناشتہ بنا لو۔ ابا کی بیٹی بھی دے کر آنا ان کو، وہ کہتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ ناشتہ؟ اتنے سویرے؟ اس نے وال کلاک کو دیکھا، جو اب تک اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ ناشتہ کون بناتا ہے، اور دوپہر کو رات کا کھانا کون بناتا ہے، صفائی کون کرتا ہے، کچن کون صاف کرتا ہے۔ اس نے غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اب اچانک اس کی تمام حصے جیسے ایک دم بیدار ہوئی تھیں۔ میں نے تو اس تمام عرصے میں کوئی ملازم ہی نہیں دیکھا گھر میں، وہ بڑبڑائی۔ کون سنبھالتا ہوگا سب کچھ؟ اور اب کون سنبھالے گا؟ کہیں میں تو نہیں؟ اسے جھرجھری آئی۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کھولا، انڈے، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، سبھی کچھ تھا۔ اسے ناشتہ بنانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ اوہ، ابا جی کی بیٹی! اسے اچانک یاد آیا۔ جلدی سے چائے کی ٹرے سے جا کر اس نے بڑے سلیقے سے سر پر آنچل ٹکایا۔ میں اندر آ جاؤں ابا جی؟ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے ہی بستر پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے۔ اوہو، بہو رانی آئی ہیں، آؤ آؤ، خوش دلی سے بولے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ آج تو لطف ہی کچھ اور ہوگا چائے کا، وہ مسکرائے۔ روز کون بنا کر دیتا تھا آپ کو چائے؟ اس نے محتاط طریقے سے پوچھا۔ چینی کتنی؟ نہ بیٹا نہ، چینی نہیں۔ پرانے مریض ہیں شوگر کے، اور ہاں 2 سالوں سے اسی نالائق کے ہاتھوں کی چائے پی ہے، حلق مستقل کڑوا سے رہنے لگا ہے، وہ مسکرائے۔ اب تو ہماری بیٹی آ گئی ہے، بڑی میٹھی چائے بنا کر لائے گی، کیوں بیٹا؟ وہ حالے سے مسکراتی۔ چائے ان کے حوالے کر کے باہر آ گئی۔ ناشتہ وہ میز پر لگا کر گئی تھی۔ حمزہ اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ کوئی خاص خبر؟ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، سلائس پر مکھن لگانے لگی۔ حمزہ نے چپ چاپ اخبار اس کے آگے کر دیا۔ ڈان، اس نے ہیڈنگ دیکھی، آہستہ سے اخبار پرے کر دیا۔ پڑھ لو، حمزہ نے کپ لبوں سے لگایا۔ ابا جی کے کمرے سے لے آؤں گی، اس نے منہ بنایا۔ اس کو پڑھنے میں تو 1 گھنٹہ لگاؤں گی۔ حمزہ کی مسکراہٹ بڑی بے ساختہ تھی۔ انگلش کی ٹیوشن دینی پڑے گی کیا؟ جی نہیں، اس سے خفت ہوئی، بس اخبار نہیں پڑھتی میں، خصوصاً یہ ڈان۔ تمہاری مرضی، اس نے اخبار دوبارہ منہ کے آگے کر لیا۔ سنیے، اس نے بڑی مشکلوں سے کہنے کو لب کھولے، فرمائیے۔ آج صفائی کون کرے گا؟ صفائی؟ ظاہر ہے تم۔ کلثوم آپا اور سریا آپا کب تک رہتی؟ حمزہ کو حیرانی ہوئی۔ اور برتن کچن وغیرہ؟ اس نے تھوک نکلا۔ دیکھو کنزا بی بی، حمزہ نے اخبار لپیٹا، بات یہ ہے کہ میری جاب خاصی نئی ہے،
तनख्वाह महदूद, मैं नौकरों की फ़ौज ज़फ़र मौज पालने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। फिर कुल 3 तो अफराद हैं, घर ही कितना है और काम भी कितना है, लेकिन इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? इसे रोना आया। कैसे करोगी भाई? जैसे मैं करता था। हमज़ा शदीद हैरानी के आलम में था। आप? किंजा की आंखें अपने कुदरती साइज से कई गुना फैली। आप बर्तन धोते थे, सफाई करते थे, कपड़े आप धोते थे, मैं जाले तक उतारता था। इसने बड़ी साफ कोई से कहा। महीनावार और हफ्तेवार सफाई भी करता था। ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो? जाहिर है बहनें अपने घरों की हैं। अम्मी की अचानक डेथ हुई तो इसके अलावा और क्या चाह रहा था कि ये सारा निज़ाम मैं संभालता। अब्बा जी का तो तुम जानती हो, इनकी टांगों पर फालिज है, बेचारे व्हील चेयर के मोहताज हैं। रहे मुलाजिम तो मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं सिर्फ खाना पकाने के लिए एक मुलाजमा को अफोर्ड कर सकता हूँ। अब तुम आ गई हो, इसलिए खाने की फ़िक्र भी नहीं है। किंजा ने मेज़ का कोना मजबूती से थामा। लेकिन अगर तुम्हें वाकई 3 अफराद का काम ज़्यादा लगता है तो किसी एक काम के लिए रख लो मुलाजमा। इसने फ़राक दिलाना पेशकश की। तो क्या आपने सिर्फ इसलिए मुझसे शादी की? इसने मरी मरी आवाज़ निकाली। सच्ची बात बताऊं किंजा बीबी, हमज़ा ने हाथ साफ किए, तो ये शादी कत्तन मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। ये अब्बा मियाँ कलसोम आपा की साजिश थी मेरे ख़िलाफ़। मैं फ़िल वक्त इन चक्करों में कतन नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि मैं ऑफिस से आकर बखुशी सारा काम करता था, लेकिन जाने क्यों इन्हें तकलीफ़ होती थी। 2 साल से आदी था मैं इस रूटीन का। किंजा का दिल चाहा कहे, अब बखुशी अपनी रूटीन बरकरार रखिए, मुझे बेहद खुशी होगी। उसने मजबूती से लब भींच लिए। खाना क्या पकाऊं? हमज़ा अपनी सफ़ेद सुज़ुकी कार की तरफ बढ़ा तो पीछे पीछे आई। तुम्हारी मर्ज़ी। इसने गेट खोला। फ्रिज में सब्ज़ी गोश्त वगैरह सब कुछ है, दालें भी हैं। डब्बे सारे देख लेना, एक मरतबा आसानी रहेगी। आसानी? इसने गहरा सांस लिया। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी, क्या आसान हो गई? अंदर आकर इसने असरे नौ पूरे घर का जायज़ा लिया। लगता ही नहीं था कि एक घर 2 साल से औरत के वजूद से महरूम था। हर शय ठिकाने पर चमकती हुई मिली। हाँ, कलसोम आपा सुरैया आपा ने दुरुस्त किया होगा सब आकर। किंजा बेटी, अब्बा जी की आवाज़ आई। तेज़ी से उनकी तरफ आई। जी अब्बा जी। बेटी ज़रा मेरी व्हील चेयर तो इधर लेकर आओ। वो व्हील चेयर उनके पास ले आई और बैठने में उनकी मदद करने लगी। वो जो काली सी औरत खाना पकाने आती थी ना, वही करती थी सब कुछ, मेरी देखभाल वगैरह। उन्होंने वजाहत की। कोई बात नहीं अब्बा, अब मैं आपका ख्याल रखूँगी। वो मुस्कुराई। इतनी गुड़िया सी तो हो, कैसे करोगी इतना काम? वो फ़िक्रमंद हुए। सच अब्बा जी, मुझे तो कुछ नहीं आता। इसने जैसे एक हमदर्द देखा फ़ौरन अपना दुखड़ा बयान किया। फ़िक्र मत करो गुड़िया, जो ना आए इस नालायक से करवाना। उन्होंने फ़ौरन इसकी हिम्मत बंधाई। आज क्या पकाऊं? आपको खाना पकाना आता है अब्बा जी? हाँ, कुछ कुछ आता तो है। चलो आज बैंगनों पर तबाह आजमाई हो जाए। क्यों? ठीक है। वो मुस्कुराई। फिर ले आओ बैंगन, मैं काट देता हूँ, तुम रोटी पकाओ। वो झटपट फ्रिज से बैंगन ले आई। लें अब्बा जी, आप काट तो लेंगे ना? इसे इनकी सलाहियतों पर शक गुजरा। अरे गाजर मूली की तरह काट दूंगा। उन्होंने छुरी लहराई। बस जब तक मैं रोटी पकाती हूँ। वो किचन में घुस गई। रोटी पकाकर वो निकली तो अब्बा जी नहायत नफासत से बैंगन काट चुके थे। जल्दी से पका लो वरना काले पड़ जाएंगे। उन्होंने ट्रे इसकी जानिब बढ़ाई। वो उनसे कहना चाहती थी कि अब्बा जी ज़रा तरकीब तो दोहरा दें, कुछ याद नहीं आ रही। लेकिन शर्मिंदगी माने आई। क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी लड़की को इतने से बैंगन पकाने नहीं आते? आते तो हैं, बस ज़रा कुछ याद नहीं आ रहा। सारी तरकीबें आज ही मिक्स होनी थी दिमाग में। उसने सर पे हाथ मारा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर जैसे तैसे कुछ मिर्च मसाले डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अल्लाह मियाँ, मज़ेदार खाना पक्का तो 2 नफल पढ़ूंगी। उसने दिल ही दिल में दुआ की और जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। ज़रा से बर्तन थे, जल्द ही धुल गए। अब सफाई कर ली जाए, इसने सोचा और मुस्कुराती हर काम ठीक ठीक हो रहा था। वैसे काम कुछ मुश्किल तो नहीं होता, बिला वजह ही सब डराते रहते हैं। हाँ, कमरे की बेडशीट झाड़ते हुए बुड़बुड़ाई। किंजा बेटी, बाहर से अब्बा जी की आवाज़ आई। ये धुआं कहाँ से उठता है? या आग कहाँ है लगी हुई? धुआं? आग? ओह बैंगन! इसने एक फलक शगाफ चीख मारी और किचन की जानिब दौड़ लगाई। बैंगन जलकर खाक हो चुके थे। या इलाही, इसको बेहद रोना आया। अब क्या करूं? मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर निकली। अब्बा जी ने बेसाख्ता मुस्कुराहट लबों में दबाई। पक गए बैंगन? वो मुस्कुराए।
कुछ ज़्यादती से। अब क्या होगा अब्बा जी, दोबारा से पकाऊं? नहीं, रहने दो। इसकी उत्तरी सूरत देखकर वो मुस्कुराए। तुम अपना बाकी काम मुकम्मल करके कुछ आराम कर लो, लेकिन खाना छोड़ो, इसकी फ़िक्र। जल्दी से काम कर लो, शतरंज खेलते हैं। आता है ना? अरे चैम्पियन हूँ मैं। वो खिल उठी। बस तो फिर जल्दी से आ जाओ। ओके सर। जल्दी जल्दी सफाई से फारिग होकर वो नहाई और उनके मुकाबिल आ बैठी। हमज़ा क्या खाएंगे आकर? उन्हें भूख लगी होगी ना, ज़बरदस्ती। अरे खा लेगा कुछ ना कुछ। तुम मोहरे जमाओ, बड़ा अटैक गेम खेलता हूँ मैं। फिर जब वो इनसे 2 बाजियां हारी तब हारन बजा। हमज़ा आ गए, वो कहती हुई उठी। गेट खोलकर वो जल्दी से अंदर आ गई। अब मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी ना? हिम्मत है इसकी? वो मुस्कुराए। चलो मेरी हैट्रिक मुकम्मल होने वाली है, ये गेम तो मैंने ही जीतना है। हमज़ा गाड़ी लॉक करके अंदर आया। हमज़ा बेटे। अब्बा जी से कमरे की सिम जाता देख कर बोले, जी अब्बा जी। वो पलट आया। कपड़े बदल कर फटाफट ऑमलेट बना लो 3-4 अंडों का, बड़ी भूख लगी है हम दोनों को। इसने जल्दी से आंखें मींच लीं। इसके ख्याल में अब यकीनन गोलाबारी होनी थी। चाल चलो। अब्बा जी की आवाज़ पर इसने आंखें खोली तो वो जा चुका था। अब्बा जी। बोलो। ये आपने इनका नाम हमज़ा क्यों रखा? हरूफ तहज्जी में से ही रखना था तो अलिफ रख देते, ईमान से बड़ा सूट करता इन पर। उन्होंने फलक शगाफ कहकहा लगाया। सच अब्बा जी, बिल्कुल अकड़े रहते हैं, कल्फ लगे लट्ठे की तरह। कुछ बदतमीज़ी तो नहीं करता ना तुमसे? उन्होंने झुककर सरगोशी की। नहीं खैर, ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे तो मुझसे बात ही कम करते हैं। वैसे ये ऐसे क्यों हैं अब्बा जी? इसने बड़े भोलपन से पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बात दरअसल ये है कि हमज़ा बहन भाइयों में सबसे छोटा है ना, तो इसलिए अपनी माँ से बहुत अटैच था। जब से खुदा बख्शे तुम्हारी सास ने साथ छोड़ा है तब से कुछ चुप चुप सा हो गया है। कोई है नहीं ना इसके लाड उठाने वाला। मैंने तो सदा ही सख्ती रवा रखी है इससे। एक ही बेटा है ना, खौफ था बिगड़ ना जाए। फिर इसकी शादी भी कुछ ज़बरदस्ती से ही की गई। दरअसल ये भी करना नहीं चाहता था। कहता था मैं अपनी रूटीन से यूँ अचानक नहीं हट सकता। पगला कहीं का। अब बताओ भला मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा है? यूं ही बैठे बैठे किसी दिन चुपचाप मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे अब्बा जी। बेसाख्ता बोल उठी। बस इसीलिए कर दी ज़बरदस्ती इसकी शादी। अभी खफा है, रूठा हुआ है, तुम दिल पे मत लेना। मेरा बेटा फितरत का हीरा है, हीरा। अब्बा जी खाना लगा दिया है मैंने, आकर आहिस्ता से बोला और मुड़ गया। किन्जा को टोट कर शर्म आई। हाय अल्लाह, कितनी शर्म आएगी यूँ जाकर खाते हुए, इसने सोचा। चलो बेटी, मुझे भी ले चलो। वो उन्हें लेकर चुपचाप मेज़ तक आ गई। ये कबाब कहाँ से आए? इसे मेज़ पर रखे कबाब देखकर हैरानी हुई। कलसूम आपा बनाकर फ्रीज कर गई थी, इसने जवाब दिया। किन्जा ने बैठकर बगौर इसके तासुरात देखे। हमज़ा का चेहरा बेतासुर था। अंदाज़ा न कर पाई खफा था या नहीं। खाना खाकर वो उठा तो पूछने लगा, बर्तन उठा लूँ? हाँ। वो चौंकी। नहीं, मैं उठा लूँगी। इसे बेहद शर्मिंदगी हुई। उफ, नाराज़ है शायद। बर्तन वगैरह उठाकर वो कमरे में आई तो वो कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। अध खुली किताब इसके सीने पर पड़ी थी। चंद लम्हे बगौर इसको देखती रही। शक्ल तो अच्छी खासी है, इसने सोचा, बस ज़रा तस्वीर कुछ अच्छी नहीं आई थी। इसे अपने रिश्ते के लिए भेजेगी तस्वीर याद आई। सोचा होगा बुरी तस्वीर दूंगा तो शायद इनकार हो जाएगा। अपनी सोच पर इसे खुद ही हंसी आ गई। दोपहर ढलने पर इसने बड़े एहतमाम से चाय तैयार की और कमरे में आई। सुनिए, चाय पी लें, शाम भी हो गई है। इसने पर्दे हटाए तो वो उठकर बैठ गया। किसने बनाई है? वो पूछने लगा। मैंने। वो मुस्कुराई। आती है? इसने यूँ पूछा जैसे बड़ी हैरानी हुई हो। वो शर्मिंदा सी हो गई। आप खफा हैं? क्यों? मैं क्यों खफा हूँगा? उल्टा इसी से पूछने लगा। आपको खाना तैयार करना पड़ा ना, मैंने सालन भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं, हमज़ा नरमी से बोला। मुझे तो आदत है, वैसे ही बिल्कुल खफा नहीं हूँ। फिर बैंगन पकाए तो थे तुमने, ज़रा से काले हो गए तो क्या हुआ? ज़रा से? इसने हैरानी से पूछा और वो बेतहाशा हंस दिया। आइसक्रीम खाओगी? इसका मूड खिलाफ़े तवक्को बेहद खुशगवार था। किसको देखा था ख्वाब में? इसने दिल में सोचा था और मुस्कुरा दी। चलें। दूसरे दिन वो बगैर हमज़ा के जगह उठ गई। अब्बा जी को बैठी देकर इसने नाश्ता तैयार करके मेज़ पर लगाया और इसे बुलाने कमरे में आई। वार्डरोब खोले कुछ सोच रहा था। क्या ढूंढ रहे हैं? वो पूछने लगी। ढूंढ नहीं रहा, सोच रहा हूँ। उसने दरवाज़ा बंद किया। क्या सोच रहे हैं? यही कि तकरीबन सारे कपड़े मैले हो चुके हैं, बस 2-3 जोड़े ही हैं। ओह अच्छा, मैं धो दूँगी आज। शुक्रिया। वो जैसे बेहद ममनून हुआ। नाश्ता बना दिया है?
जी चलें कर लीजिए। उफ, आज ढेर सारे काम हैं। हमज़ा के जाने के बाद इसने परेशानी से सोचा। अब्बा जी भी बाहर आ गए थे और अब नाश्ता कर रहे थे। एक गेम हो जाए, इसे सोच में गुम देख कर बोले। अभी नहीं, वो मुस्कुराती। आज तो ढेरों काम हैं। अच्छा, उन्होंने कंधे उचकाए। फिर तो आज किसी मोटी सी किताब से काम चलाना पड़ेगा। किन्जा ने दुपट्टा कमर से कसा, सफाई में लग गई। हमज़ा के आने से पहले सारा काम कर लूँगी, इसने सोचा। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली निकली। जब तक इसने सफाई की, बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और खाना पकाया, तब तक वो वापस भी आ गया। आज जल्दी आ गए आप, इसे हैरानी हुई। काम कुछ कम था, जल्दी उठ गया मैं। अंडे बनाऊं क्या? वो मुस्कुराया। ओह नहीं, वो हंसती। मैंने दाल चावल पकाए, खा लेंगे ना? अरे भाई, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ भी खा लेंगे। बैठकर मोज़े उतारने लगा। सुनो, इसे जाता देख कर बोला। जी। पलट कर आई। एक चीज़ लाया हूँ तुम्हारे लिए, दे दूँ? क्या लाए हैं? इसे बेहद खुशी हुई। दिखाएं ना जल्दी से। ये लो। इसने एक पैकेट उसको पकड़ाया। जल्दी जल्दी रैपर उतारने लगी। अचानक जैसे इस पर मनो ओस आ गिरी। किचन और खाना पकाने से मुतालिक 2-3 किताबें इसके हाथ में थीं। इसकी सूरत देखकर हमज़ा ज़ोर से हंस दिया। आइंदा बैंगन मत जलाना, इसके करीब से गुजरता हुआ आहिस्तगी से बोला, वो भी मुस्कुराती। हमज़ा, मैंने आज कपड़े धोने। इसके लिए खाना मेज़ पर रखते हुए इसने रोब झाड़ा। हाँ, धो लो। और देखो, वॉशिंग मशीन के पीछे पानी ना फेंकना, करंट मारती है। करंट? इसे करंट लगा, पकड़ तो नहीं लेती। हाँ, अगर तुमने इसे पकड़ा, वो भी यकीनन पकड़ लेगी तुम्हें। वो मुस्कुरा दिया। वैसे डरो नहीं, बस पानी इसमें एहतियात से डालना, पीछे से खुश्क रहेगी, बिल्कुल करंट नहीं मारेगी। खाना खा कर उठ गया तो वो सहन में आ गई। इससे तो अच्छा था हाथ से ही धो लेती। हाथ से? ओ नहीं, मैले कपड़ों का एक ढेर देखकर इसने झुरझुरी ली। मशीन ही ठीक है, थोड़ा सा करंट ही तो मारती है बेचारी। कपड़े और वॉशिंग पाउडर डालकर इसने बड़ी एहतियात से पानी डाला और मशीन ऑन कर दी। कहाँ करंट मारा बेचारी ने? वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी। तभी न जाने कहाँ से एक मोटी सी छिपकली आकर ऐन इसके सामने गिरी। इधर इसने छिपकली को देखा, उधर एक दिल दोस्त चीख इसके मुंह से निकली। छिपकली तो आन वाहिद में इसके सामने से भागती हुई किसी कोने में घुस गई। दूसरे लम्हे घबराया हुआ हमज़ा तकरीबन भागता हुआ इस तक पहुंचा। किन्जा, किन्जा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? इसका हाथ थाम कर जैसे करंट ढूंढने लगा। चंद लम्हे से देखती रही, फिर मुस्कुराती। कैसे लगा करंट? छोड़ो, रहने दो यार, मैं खुद धो लूँगा। अरे, वो खिलखिला कर हंसती। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई करंट वरंट नहीं लगा। ओह, एक गहरा सांस जैसे इसके सीने की कैद से आज़ाद हुआ। तुमने चीख क्यों मारी थी? वो एक छिपकली आ गई थी। अपने चीखने की वजह पे इसे बेहद शर्मिंदगी हुई। छिपकली? हमज़ा ने इसे यूँ देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। इसलिए चीखी थी तुम? जी। इसने नज़रें झुकाकर एतराफ़ किया। धत तेरे की। इसने बेसाख्ता इसका हाथ छोड़ा। कमाल कर दिया यार। अंदर जाते हमज़ा को देखकर खिलखिला कर हंसती। दूसरे दिन जुम्मा था। हमज़ा हस्बे आदत सवेरे ही उठ गया था, लेकिन वो काहिल बनी 9 बजे तक बिस्तर में पड़ी रही। किन्जा, उठो यार, अब नाश्ता बना लो, बड़ी भूख लगी है अब तो। आखिर 9 बजे झुंझलाता हुआ आया। तब वो काहिली से उठकर किचन में आई। लो भला, अब एक दिन भी खुद नाश्ता नहीं बना सकते? वैसे तो रोज़ खुद ही सारा काम करते थे, अब मैं आ गई तो नवाब बन गए एकदम। पराठे पकाते बड़बड़ा रही थी। कल इतने सारे कपड़े धोए, इसका भी एहसास नहीं। जगा दिया इतनी सुबह। चिमटा उठाने को पलटी तो इसकी निगाह हमज़ा पर गई। दरवाजे से टेक लगाए बगैर उसकी बातें सुन रहा था। ओह, वो खिफ़त ज़दा हुई। चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जा बैठा और हौले हौले इसे बजाने लगा। नाश्ता लगाकर अब्बा जी को बुला लाई और वो खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बात यह है कि तुम पराठे बहुत अच्छे पकाती हो। नाश्ता करते करते एकदम बोला। क्यों अब्बा जी? बिल्कुल जवाब नहीं हमारी बहू के पराठों का। अपने हाथ का नाश्ता मुझे अच्छा नहीं लगता, आहिस्ता से बोलकर सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। चाय तो मैं बहुत ही बुरी बनाता हूँ। क्यों अब्बा जी? इसने फिर तस्दीक चाहिए। बिल्कुल, तुमसे बुरी चाय मेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। उन्होंने सर हिलाया। किन्जा को हंसी आ गई। इसीलिए तुम्हें जगाया मैंने, तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं, बमुश्किल बोली, हालांकि इसके तासुरात बखूबी जान चुका था। नमाज से फारिग होकर हमज़ा अपने दोस्तों से मिलने निकल खड़ा हुआ।
किन्ज़ा की आदत थी नमाज जुम्मा से फारिग होकर वो फ़ौरन सो जाती थी और फिर शाम को देर से उठती थी। हालांकि हफ्ता 6 दिन वो दोपहर में कतई नहीं सोती थी। जुमा को न जाने क्यों इसे टूट कर नींद आती थी। आज भी वो हमज़ा के जाते लेट कर नींद की वादियों में गुम हो गई। शाम को जब इसकी आँख खुली तो 6 बज रहे थे। बाल लपेट कर वो बाहर चली आई। हमज़ा और अब्बा जी लॉन में बैठे शतरंज खेलते थे। कौन जीता? इसने बैठकर बड़े शौक़ से जमे हुए मोहरों को देखा। 2 गेम हराए हैं अब्बा जी को। हमज़ा मुस्कुराया। अब ये तीसरा भी हार रहे हैं। अब्बा जी मैं हेल्प करूं? हारने में? वो सोच में मगन बोले। हमज़ा खिलखिलाकर हंस दिया। अब्बा जी की हार यकीनी है, साइड लेनी है तो मेरी लो। और जो हम जीत गए तो? अब्बा जी ने सर उठाया। तो आज मेरी तरफ से डिनर, जहां आप कहें। हमज़ा मुस्कुराया। हाय सच? किन्ज़ा ने मुट्ठियाँ भींची। हरा देना अब्बा जी किसी भी तरह से। मुश्किल है बेटा रानी, मुश्किल है। उन्होंने मायूसी से सर हिलाया। सुनिए, जानकर हार जाए ना आप प्लीज़, किन्ज़ा बड़ी लजाजत से बोली। अरे वाह, क्यों हार जाऊं? वो हंस दिया। चल चलें अब्बा जी, सोचते क्या हैं? ये लो भाई। उन्होंने मोहरा आगे किया। और ये फाइनल चेक। इसने घोड़ा बढ़ाया और हंस दिया। कैसी रही है ट्रिक? हाँ, अब्बा जी जीतते तो मज़ा भी आता। इसने मुंह बनाया और करीब रखे चाय के बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर वो बर्तन धोने लगी। सुनो, वो जाने किस वक्त चला आया। हाँ, वो चौंकी। चलो तैयार हो जाओ, डिनर बाहर करते हैं। सच? वो खुश हुई। वो मुस्कुरा दिया। रात को वापस आए तो हमज़ा बेहद थका हुआ था। किन्ज़ा ज़रा जूते तो उतार दो, बेड पर लेट क्या था? बहुत थक गई क्या? नीचे बैठकर इसके तस्मे खोलने लगी। गनूदगी के से आलम में बोला। अच्छा मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, बल्कि फ़्रेश हो गई बाहर जाकर। इसने जूते कोने में डाल दिए। हमज़ा बहुत नींद आ रही है क्या? कपड़े तो चेंज कर लें। नहीं यार, बस रहने दो। इसने पाँव ऊपर करके करवट ले ली। बस लाइट बंद कर दो। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? लाइट बंद करके वो बाहर निकल आई। अब्बा जी तो उनके साथ गए ही नहीं थे। हालांकि किन्ज़ा ने बेहद ज़िद की। अपनी टांगों की वजह से वो कम ही बाहर निकलते थे। उनके वापस आती वो अपने कमरे में सोने जा चुके थे और अब उनके कमरे की बत्ती भी गुल थी। इसके साथ हमेशा से यही होता आया था। जुमा की दोपहर को देर तक सोकर ऐसी ख्वार होती थी। रात को सब पढ़ पढ़ कर सो जाते और वो तन्हा घर के कोने से दूसरे कोने तक रात गए तक घूमती रहती। जब तक निम्रा की शादी नहीं हुई थी वो इसे जगाए रखती थी। फिर जब निम्रा चली गई तो वो हुमा को पकड़ लाती थी। ज़रूरी है तुझे हर हफ्ते मेरी एक रात ख्वार करना? वो चिढ़ती। कैसी दोस्त है, मेरी खातिर ज़रा सा जाग नहीं सकती? वो इल्तिजा करती। अकेले जागते में से बड़ा डर लग सकता था। इस वक्त भी वो सहमी सहमी से लाउंज में बैठी थी। अल्लाह करे लाइट चली जाए और गर्मी से हमज़ा जाग जाए। इसने दुआ की और अगले 15 मिनट तक लाइट जाने का इंतज़ार करती रही। आखिर उठी और कमरे में आ गई। साइड टेबल पर रखा गुलदान इसने जानकर गिराया। हमज़ा ने करवट बदली, फिर गहरी नींद सो गया। यूँ रात को खुली आंखों से सन्नाटों को तकते हुए सख्त वहशत ज़दा होती। हमज़ा, बात सुने। आखिर इसने सोते हुए हमज़ा को हिलाया। क्या है यार? गहरी नींद में था, उठे तो सही। उफ़ो, वो बैठ गया। चोर आ गया क्या? नहीं तो अभी तो नहीं आया। फिर क्या क़यामत आ गई? वो झुंझलाया। वो शतरंज खेलें? इसने डलते डलते कहा था। क्या? हमज़ा ने पास रखा लैंप ऑन किया। किन्ज़ा तुम कुछ, मेरा मतलब है मैं पागल नहीं हूँ हमज़ा, इसने बेचारगी से कहा। इस वक्त ईमान से लग रही हो। वो भिन्नाया। क्यों जगाया है तुमने मुझे इतनी मीठी नींद से? सच हमज़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है अकेले में। इससे रोना आने लगा। क्या हो जाएगा अगर थोड़ा सा जाग लेंगे तो? वैसे ही मैंने कभी शतरंज नहीं खेली आपके साथ। माय गॉड, हमज़ा ने सर थाम लिया। किन्ज़ा सो जाओ आराम से। लैंप ऑफ किया और चादर ओढ़ कर लेट गया। वो यूं ही इसके पाइंती बैठी इसे टुकर टुकर देखती रही। चंद लम्हों बाद इसने चादर से मुंह निकाला। नींद ही नहीं आ रही? इसने सर हिलाया। अच्छा बाबा। वो उठ बैठा। जाओ लेकर आओ। अभी लाई। वो खिल उठी। चंद लम्हों में वो बाहर से बिसात और मोहरे उठा लाई। लाइट जला लूँ? जाहिर है बिल्ली तो नहीं हूँ मैं। वो भिन्नाया। और टाइम क्या हुआ है? ज़्यादा नहीं, बस 1 बजा है। वो संजीदगी से मोहरे लगाने लगी। अभी भी नींद आ रही है? इसने जमाही लेते हुए हमज़ा को देखा। हाँ, नहीं तो। इसने आँखों को मसला। फिर देर तक वो इसके साथ बैठा उल्टी सीधी बाजियाँ चलता रहा। इसके बावजूद 2 गेम हार गई।
अब तो मैं ज़रूर हरा दूंगी आपको। तीसरी दफ़ा मोहरे जमाते हो भिन्नाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हंसने लगा। फिर यही हुआ, तीसरा गेम भी हारने लगी। अच्छा बस, इसने दरमियान में मोहरे बिगाड़ दिए। अब मुझे नींद आ रही है। अरे वाह, वो बिगड़ा ये अच्छी रही। अब मेरी नींद उड़ाकर तुम्हें नींद आने लगी। लगाओ दोबारा। नहीं। बिसात एक तरफ करके लेट गई। मैं नहीं जीत सकती आपसे ये गेम। अच्छा चलो लूडो खेलते हैं। मुकम्मल तौर पर चौकस हो चुका था। हाँ, इसने करवट बदल ली। सच, अब तो बहुत नींद आ रही है। किन्जा की बच्ची खुद गर्ज चंद लम्हे से घोलता रहा, फिर उठकर बाहर चला गया कोई किताब पढ़ने। खिड़की से बाहर झांकते झांकते वो बेजार हो गई। रुख मोड़कर हमज़ा को देखने लगी, सर झुकाए, जाने नहाए तंदही से क्या लिख रहा था। हमज़ा, कहो। इसने कुछ देर के बाद जवाब दिया। सर उठाएं तो कुछ कहूँ ना। वो झुंझलाई। हाँ कहो। इसने सर उठाया। मुझे अम्मी के घर जाना है। अभी? इसे हैरानी हुई। अभी तो मुझे बहुत सा काम करना है। लेकिन मैं सख्त बोर हो रही हूँ। अब्बा जी भी जाने कौन सी मोटी सी किताब में गुम है। आपको भी फुर्सत नहीं। मैं क्या करूँ आखिर? कोई काम कर लो, गाने सुन लो। दोबारा फाइलों में मसरूफ़ हो गया। इसे सख्त गुस्सा आया। ये भी कोई तुक थी? सुबह से शदीद बेजार हो रही थी। गुस्सा में उठकर इसने अपने कपड़े निकाले और नहाने घुस गई। थोड़ी देर में तैयार होकर इसके सर पे खड़ी थी। चलें? जल्दी से छोड़ आए मुझे। कहाँ? इसने हैरानी से सर उठाया। क्यों तैयार हुई हो? बताया तो है अम्मी के घर छोड़ा है। पागल हुई हो किन्जा? वो झुंझला गया। तुम्हारी अम्मी का घर कहाँ जनूब में वाक़? 1 घंटा लगेगा जाने में, फिर वापस आने में 1 घंटा, फिर तुम्हें वापस लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? बड़े इत्मीनान से बोली। ये फजूल सा काम ही तो कर रहे हैं आप। फजूल? हमज़ा को गुस्सा आया। ये काम फजूल लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे ज़रा से मोट के लिए मैं अपने 4 घंटे ज़ाया करूं? वो फजूल काम नहीं है। मुझे तो तुम बेहद फजूल लड़की लग रही हो इस वक्त। फ़ौरन मुँह फुलाकर वहाँ से हट गई। दोबारा खिड़की के पास आ बैठी। फिर इसने हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल दी। तेज़ हवा का झोंका आया। हमज़ा के कागजात उड़ने लगे। अरे बेवकूफ़ लड़की, बंद करो खिड़की। नहीं, वो ज़िद से बोली। मैं बाहर देख रही हूँ। उफ़, क्या मुसीबत है। हमज़ा ने बेबसी से इसे देखा। चलो उठो मेरी जान की दुश्मन, खबर है अब ज़िद थोड़ा ही छोड़ोगी तुम। अपनी फाइलें समेट कर इसने इन पर पेपर वेट जमाया और उठकर गाड़ी की चाबियाँ निकाली। चलो उठो अब। वो गुस्सा में था। ऐसे मुंह बनाकर छोड़कर आने का क्या फ़ायदा? बदस्तूर बाहर देखती रही। किन्जा जी, पिटना है तुमने? नाहिद संजीदगी से पूछ रहा था। इसे हंसी आ गई। बड़ी हिम्मत है, इसने दिल में सोचा और उठ खड़ी हुई। चलें? तमाम रास्ते खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। अंदर नहीं आएंगे? घर पर उतरकर इसने झुक कर पूछा। लेने आऊँगा तब आऊँगा, अभी जल्दी है। लेकिन मैं तो आज वापस नहीं जाऊँगी। इसने फ़ौरन ढिठाई का मुजाहिरा किया। क्या? लेकिन क्यों? बस मेरी मर्ज़ी। कल शाम को आइएगा लेने, कहकर बड़ी बेरुखी से अंदर की तरफ बढ़ गई। जब इसने हंस हंस कर हुमा को सारी रोदात सुनाई तो इसने एक मुक्का इसे मारा। मेरे दूल्हा भाई की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा। हाँ, शराफत? इसने मुंह बनाया। ये कौन सी शराफत है भला? मैं तो एक तरह से कैद होके रह गई हूँ हुमा। सुबह उठो, काम में लग जाओ। दोपहर को हमज़ा अब्बा जी अक्सर सो जाते हैं। मेरी दोपहरें तन्हा और सुनसान गुजरती हैं। शाम को फिर वही थोड़ा बहुत काम, फिर तन्हाई। हमज़ा तो अमूमन अपने ही कामों में मसरूफ़ रहते हैं। अब्बा जी भी जब मूड में हों तब कोई शौक़ी शरारत कर लेते हैं, वरना तो वो भी कोई बहुत ही मोटी सी किताब खोले बैठे रहते हैं। मेरा तो दम घुटने लगता है कभी कभी। हुमा ने मसनूई इजहार अफसोस किया। अब तो मैं भी संजीदगी से मुर्तज़ा से शादी ना करने के बारे में सोच रही हूँ। तेरी दास्तान अलम ही कुछ ऐसी है। यकीन नहीं आता ना? तो करके देख ले शादी। किन्जा ने बुरा सा मुँह बनाया। लेकिन तुझे क्या फ़िक्र? तेरी ससुराल में तो 3 नंदे हैं, 2 अदद देवर हैं तेरे, सास हैं, ससुर हैं। तुझे क्या फ़िक्र तन्हाई की? अजीब बात है यार। हुमा संजीदा हुई। इंसान अपनी नाखुशी की कितनी वजूहात खुद से घड़ लेता है। जिनकी नंदे सासें वगैरह होती हैं उनके अलग दुखड़े होते हैं। फ़लाँ नंद ने यूँ किया, फ़लाँ ने ऐसे कह दिया। सास को फ़लाँ बात बुरी लगती है, ससुर साहब इस बात पर नाराज़ होते हैं, देवर साहब इस बात पर। अब तू तन्हा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तेरे साथ नहीं, तो तूने अलग तन्हाई का रोना रोया है। ये औरतें किसी हाल में खुश भी रहती हैं या नहीं? हुमा दिल मत जला मेरा। जब ये मुखालिफ थी शादी की, मुझे ख़बर थी ना ये सब कुछ मेरे बस का रोग नहीं है। उफ़, मसला क्या है आखिर? हुमा करीब हुई। हमज़ा भाई तेज़ हैं गुस्से के।
नहीं तो, ऐसी कोई ख़ास तो नहीं, इसने सोच कर जवाब दिया। कम गो हैं, ऐसे भी नहीं, बोलने पर आते हैं तो काफ़ी बोलते हैं। फिर मसला क्या है आखिर? हुमा चिढ़ गई। पता नहीं यार, इसने बेजार से सूरत बना ली। मेरी समझ में नहीं आता, मेरी ज़िंदगी अचानक यूँ तब्दील कैसे हो गई। मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही खुद को। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ क्यों आ पड़ी मुझ पर आखिर? मैं ज़िंदगी को इस तरह नहीं गुजार सकती, एक लगी बंधी रूटीन के मुताबिक। कब तक जीऊँ? अच्छा बाबा, हुमा इसकी रोनी सूरत देखकर मुस्कुराई। कर लो चेंज पैदा ज़िंदगी में, खूब इंजॉय कर लेना बुरहान भाई की शादी में। बुरहान भाई की शादी? इसे ताज्जुब हुआ। किसने कहा? तो तुम्हें खबर ही नहीं? हुमा हैरत से बोली। आंटी ने नहीं बताया? अरे मैं अभी तो आई थी, आती ही तुम्हारे घर आ गई। अम्मी से तो कुछ बात ही नहीं हो सकी। बुरहान भाई कब आ रहे हैं? इसे बेहद खुशी हुई थी ये खबर सुनकर। दियारे गैर से इकलौता भाई 6 साल बाद लौट रहा था। खुशी तो होनी ही थी, शादी की खबर सुनकर डबल खुशी। हुमा को आने का कहकर इसी वक्त छलांगे लगाती घर आ गई। अम्मी जी, बुरहान भाई कब आ रहे हैं? 15 को। वो मुस्कुराई। तुम्हें हुमा ने बताया होगा? जी। बेहद खुश थी। निमरा को और अपिया को पता है? हाँ, दोनों चक्कर लगा गई हैं एक आध बार। तुम तो ऐसे अपने घर की हुई कि पलटकर खबर ही नहीं ली। बस अम्मी, वो उदास हो गई। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही तो हैं घर की। मैं ही आ गई तो कौन संभालेगा घर को? कौन देखेगा अब्बा जी को और हमज़ा को? तो आखिर पहले भी तो किसी न किसी तरह चलता ही था ना घर। अम्मी कुछ खफा सी थी। बस अम्मी जी, बुरहान भाई की शादी में तो मैं महीना भर पहले से आऊँगी। एकदम एक्साइटेड हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मुस्कुराई। निमरा और सफ़िया भी कह गई हैं 15 दिन पहले से आने का। आखिर को अकलौता भाई है तुम्हारा, सब कुछ तुम लड़कियों ने ही तो करना है। मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं कुछ करने की। सब्ज़ी की ट्रे उठाकर किचन में चली गई तो कुशन गोद में रखकर आने वाले दिनों के मुतालिक सोचने लगी। दूसरे दिन हमज़ा इसे लेने आ गया। शाम को जब वो हुमा के घर से लौटी तो वो ड्राइंग रूम में दादा अब्बा के साथ महवे गुफ्तगू था। उफ़्फ़ो, इसका दिल एकदम बुझ गया। कितनी रौनक है यहाँ, पता ही नहीं चलता वक्त गुजरने का। अब दोबारा वही बेरौनक बेरंग ज़िंदगी। रात का खाना खाकर हमज़ा ने मुतवक्के नज़रों से इसकी जानिब देखा, जैसे पूछ रहा हो चलें चलें। वो उठ खड़ी हुई। मूड नहीं है जाने का। गाड़ी में बैठकर वो पूछने लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बाहर देखने लगी। सुनिए, रास्ते में बोली। कहो। बुरहान भाई आ रहे हैं 15 को। खबर है मुझे, दादा अब्बा ने बताया था अभी। इसने एक निगाह किन्जा पर डाली। फिर लाएंगे ना मुझे अम्मी के यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो मुस्कुराया। 2-3 दिन रहूँगी मैं। इसने झट कह डाला। चंद लम्हे खामोश रहा। बोलें फिर? क्या बोलूँ? इसने गहरा सांस लिया। मर्ज़ी है तुम्हारी। और आपकी मर्ज़ी क्या है? वही जो तुम्हारी। बेशक रह लेना। इसका लहजा बेतासुर था। वो भी इजाज़त पाकर मुतमईन होकर बाहर गुजरते मनाजिर देखने लगी। फिर वाकई कहने के मुताबिक वो खामोशी से 14 को ही इसे अम्मी के घर छोड़ गया। परसों आ जाऊँ लेने? जाते वक्त तो पूछने लगा। कल नहीं आएंगे क्या बुरहान भाई से मिलने? अच्छा। इसकी आंखों में उलझन उतरी। कल भी आऊँ? जी। इसका लहजा यकीनी था। ओके। इसने कंधे उचकाए। फिर सबको खुदा हाफिज़ कहता वो गाड़ी में जा बैठा। कौन सा जादू फूंका है किन्जा तूने? निमरा ने आंखें मटकाई। जादू? इसे हैरानी हुई। मतलब? अरे भाई, ऐसा मुअद्दब शौहर कम ही देखने में आता है। वो हंसी। एक हमारे हैं, रो पीट कर इजाज़त ली, वो भी छोड़कर आने पर राज़ी नहीं हुए। खुद ही आना पड़ा टैक्सी में। अब देखना कल कैसी सड़ी शक्ल बनाए आएंगे लेने। सच निम्मो, इसे हैरानी हुई। ऐसे हैं समद भाई? फ़िक्र मत कर, वो मुस्कुराई। अभी तेरी शादी भी तो नई नई हुई है। अब इसे पर निकाले भी तो क्या बेचारा हमज़ा। जी नहीं। इसे बुरा लगा तो इसे ख़ुद को हैरत हुई। ऐसे नहीं है वो। हाय अल्लाह, समरा हंस हुई। ऐसे नहीं तो फिर कैसे हैं वो? बहुत अच्छे। वो भी हंसने लगी। दूसरे दिन बुरहान भाई के आने से घर में जैसे रौनकें उतर आईं। इन तीनों को तो खुशी थी ही। अम्मी के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हर तरफ जैसे बोलाई बोलाई फिर रही थी। बुरहान भाई आए तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपटे रहे बड़ी देर तक, खामोशी से आंसू बहाते रहे। बस अम्मी जी, कल ही चलें हिना भाभी घर तारीख रखने। किन्जा जज्बाती हो गई। हाँ बिल्कुल। अपिया ने फ़ौरन हामी भरी। 1 महीने के अंदर अंदर हिना को ले आना है अब। अरे भाई, कुछ तो मुझसे भी पूछा जाए। बुरहान भाई हंसे।
और ये बिल्ली इतनी बड़ी होगी घर के फैसले कर सके। उन्होंने किंजा की चुटिया घसीटी। हाँ तो क्यों नहीं, अम्मी मुस्कुराई, माशाल्लाह अपने घर की हो गई है। फिर कैसा लगा नया तजर्बा, बुरहान भाई पूछने लगे। बोर एकदम, इसने मुंह बनाया। कोई इन्जॉयमेंट नहीं, हर वक्त घर के कामों में जुटे रहो। ले देकर कभी भूले भटके, बाहर जाकर आइसक्रीम खा ली और बस। किंजा, निमरा अचानक बोल पड़ी। किंजा ने उसकी निगाहों के ताकों में देखा। हमजा दरवाजे पर खड़ा था। आओ बेटे आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? अम्मी जान फ़ौरन उठी। अंदर जाकर बुरहान भाई से मिलने लगा। जाओ किंजा, चाय बना लाओ। अपिया बोली तो चुपचाप उठकर किचन में आके। पता नहीं उन्होंने मेरी बात सुनी कि नहीं। चाय बनाते हुए सोचने लगी, जब भी कुछ उल्टा सीधा बोलो अचानक कहीं से बोतल की जिन की तरह आ जाते हैं। अब कुछ उल्टा सीधा ना समझ लें, खैर समझ भी लें तो मुझे क्या। वो उलझी तो कंधे उचकाकर खुद ही लापरवाह हो गई। रात खाना खाकर वो जाने लगा तो गेट तक आई। कल आऊँ लेने? वो पूछने लगा। कल? इसने एक लम्हे को सोचा। कल नहीं परसों। हमजा ने एक लम्हे को बगौर इसे देखा, गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये 2 दिन इसने अपने मैके में खूब इंजॉय करते हुए गुजारे। सफ़िया अपिया भी वहीं थी और हुमा भी रोज़ आ जाती। इस पर बुरहान भाई की हंसी मजाक की बातें, वो बेहद खुश थी। अम्मी ने हिना के घर वालों से फ़ोन पर बात करके 1 महीने के अंदर अंदर शादी का कह दिया था। इन लोगों की तरफ से तो साल भर से जोर दिया जा रहा था, उन्हें भला क्या इतराज़ हो सकता था। लिहाजा उन्होंने तारीख तय करने का दिन मुकर्रर करके इन्हें आने की दावत दे डाली। मैं भी चलूँगी अम्मी, किंजा ने ठनक कर कहा। तुम? लेकिन आज तो चली जाओगी तुम, परसों ले आएगा क्या तो हमजा तुम्हें? अम्मी हैरान हुई। तो क्या हुआ, मैं रह जाती हूँ यहीं, इसने इत्मीनान से कहा। आप हमजा से कह दीजिएगा ना। नहीं भाई, वो बोली, मैं नहीं जलील होती दामाद की नज़रों में। 3 दिन से तो हो तुम यहाँ, अब क्या वो बच्चा तुम्हें रोज़ रोज़ लाने ले जाने की ड्यूटी संभालेगा? फिर तुम खुद बता चुकी हो सारा घर तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। अभी नई नई शादी है तुम्हारी, अच्छा तासुर पड़ना चाहिए उन पर तुम्हारा, ना कि तुम सारा वक्त मैके में गुजार दो। फिर कितने लोग जाएंगे आखिर? मैं हूँ, सफ़िया, निमरा हैं, तुम्हारी रज़िया खाला हैं, अब्बा जी हैं, बस काफ़ी हैं इतने लोग। तुम आज घर जाओ अपने। उन्होंने अच्छी भली तकरीर झाड़ी तो वो खामोश हो गई। फिर शाम को हमजा आ गया तो वो मज़ीद खामोश हो गई। यूँ भरा पूरा घर छोड़कर जाने का इसका कतई मूड ना था। काफ़ी दिन से वो यहीं थी, लिहाजा कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया था इसका। हमजा ने खामोश खामोश से किंजा को देखा। चलना है? जाते हुए इसने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो चौंकी। एक लम्हा को जी में आया बोल दे कि नहीं, मगर इसने कहा हाँ चलना है। आ जाओ फिर जल्दी से। बुरहान भाई से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। वो अपने कपड़े बैग में ठूंस कर सबसे मिलकर बाहर आई तो वो गाड़ी बाहर निकाल चुका था। नाराज़ है मुझसे? गाड़ी में इसको गैर मामूली खामोशी महसूस किया तो वो बोल पड़ी। नहीं, नाराज़ क्यों होगा भला? इस बात पर वो हमेशा उल्टा सवाल दाग देता था। चुप चुप से क्यों है? ऐसे ही ख्याल आ गया था। क्या? यही क्या आज जुम्मा है ना? वो ज़ेरे मुस्कुराया। हाँ तो फिर? वो उलझी। सोई थी दोपहर में? हाँ मेरी आदत है नमाज़ पढ़कर सोने की। यही तो सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोया था। आहिस्ता से हंसा। ओह, बात समझकर वो भी हंसती। गलती तो आपकी है ना, क्यों नहीं सोए जब पता था तो? फिर जागना पड़ेगा आज। बिल्कुल, और आज शतरंज नहीं कैरम खेलेंगे, इसने फ़ैसला सुनाया। क्यों? वो मुस्कुराया। 2 दिन से खेल रही हूँ ना हुमा के साथ, हाथ जम गया है। और पिछली मर्तबा की तरह बेईमानी की ना तो मैं हाथ जमा दूँगा, समझी? जी सोचूंगी, वो बोली तो बेख्तियार हंस दिया। वो बराबर बैठे हमजा को गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो? आप हंसते बड़े अच्छे लगते हैं। तुम ना हंसो तब भी अच्छी लगती हो। वो मुस्कुराया तो वो हंसती। फिर 3-4 दिन गुजरे तो दोबारा से सेट हो गई। अब जीना मरना ही यहाँ है, खामखा उदासी तारी करने से क्या फ़ायदा, इसने सोचा था। फिर अब हमजा भी इसका काफ़ी ख्याल रखने लगा था। अक्सर व बेशतर इसे घुमाने बाहर ले जाता था। शादी से पहले अब बड़े खौफनाक होते थे। वो इसे अक्सर छेड़ती। बस ज़रा गुस्सा था ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे सर थोप देने का, वो भी बदला लेता। इतनी बुरी लगती थी मैं? वो नाक फुलाती। नहीं तो बस ज़रा छिछोरी से लगती थी। पीछा क्यों किया था मेरा? वो गुस्से से पूछता और वो ज़ोर से हंस देती। इस लड़की के मुतालिक भी इसने काफ़ी तफ्तीश की थी। वो हमजा के दोस्त की बीवी थी। बकौल हमजा के कलसूम आपा ने साफ कह दिया था अपनी दुल्हन का तोहफ़ा खुद लाना अपनी पसंद से। अब भला मैं क्या पसंद करता, इन्हें साथ ले गया था ताकि कोई ढंग की चीज़ ले लूँ तुम्हारे लिए। अब इसका घर में काफ़ी दिल लगने लगा था।
तन्हाई की भी वो आदी होती जा रही थी कि अचानक इस पुरसकून झील में हुमा के फ़ोन ने कनकर फेंक दिया। किंजा, गुड न्यूज़ फॉर यू। वो चीख रही थी। आहिस्ता बाबा, आहिस्ता तो बोल। वो हंसी। हाँ क्या है? वो अच्छी खबर, जल्दी बता। शादी तय हो गई है बुरहान भाई की। वो चीखी। कब? क्या डेट तय हुई? अरे कमीनी, मेरी शादी। वो हंसी। ओ नो, ओ यस। वो बोली तो इसकी आवाज़ खुशी से लबरेज थी। मुर्तज़ा का जवाब हौसला जवाब दे चुका है। आंटी आई थी बात करने। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर क्या तय हुआ? 3 महीने बाद। सिर्फ 3 महीने हैं मेरे पास किंजा, और मेरी ज़रा तैयारी नहीं है। अरे तैयारी का क्या है, सब मिलकर कर लेंगे कुछ ना कुछ। इसने हुमा को हौसला दिया। अच्छा फिर कब आएगी तू? वो बेताबी से पूछ रही थी। बस जल्द ही चक्कर लगाऊंगी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी। अच्छा फिर बाद में बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। फ़ोन रखकर वो मुड़ी ही थी कि बेल फिर बज उठी। हेलो। इसने रिसीवर उठाया। किंजा बेटी। दूसरी जानिब अम्मी थी। कैसी हो? ओ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बुरहान की तारीख ठहर गई है, अगले महीने की 10 तारीख रखी है। सच? वो खुशी से चीखी। मुबारक हो अम्मी। खैर मुबारक। वो हंसी। दूसरी जानिब से अपिया ने रिसीवर लिया। हेलो किंजा, फिर कब आ रही हो तुम? कुछ ही दिन हैं तैयारी के, मैं निमरा को ही बुलवा रही हूँ। जी अपिया, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं कल ही आ जाऊँ। अच्छा, मैं हमज़ा से पूछ कर आ जाऊँगी 1-2 दिन में। अच्छा, खुदा हाफिज़। इसने रिसीवर रखा और बेताबी से हमज़ा के आने का इंतज़ार करने लगी। हमज़ा आया तो इसने जल्दी जल्दी खाना लगाया। क्या बात है भाई, बड़ी एक्साइटेड लग रही हो? वो बोला तो किंजा हैरान रह गई। वो यूँ ही अक्सर इसके अंदर की बात जान लेता था। अच्छा, लग रही हूँ क्या? इसने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, बड़ी बेताबी से है चेहरे पर। क्यों अब्बा जी? वो मुस्कुराया। हाँ भाई, लगती तो है। वो मुस्कुराए। वो अम्मी का फ़ोन आया था, बुरहान भाई की तारीख तय हो गई है शादी की। मुबारक हो। दोनों एक साथ बोले। खैर मुबारक। वो शर्मा गई। मुझे क्यों दे रहे हैं, इन्हीं को दीजिएगा ना। जब उनसे मिलेंगे उन्हें भी दे लेंगे। खाना खाकर वो कमरे में आए तो पीछे पीछे आई। हमज़ा सुने? हाँ सुनाओ। बुरहान भाई की 10 तारीख ठहरी है शादी की। इसने बात छेड़ी। ये तो बड़ी करीब है, 16-17 ही दिन हैं। इसने कोई किताब उठा ली। जी वो अपिया कह रही थी आने का। अच्छा, चली जाना कल परसों, मैं छोड़ आऊँगा। इसने किताब खोली। कितने दिन के लिए? क्या मतलब कितने दिन के लिए? इसने किताब वापस बंद की। देखें ना, सब कुछ हम बहनों ही ने तो करना है। इसने हाथ मसले। और तुम बहनों का काम कौन करेगा? वो तंजिया बोला। जी भाई, मेरा मतलब है तुम लोगों का भी तो अपना अपना घर है ना, वहाँ की भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। सफ़िया अपिया के घर तो कोई है ही नहीं, वो अपने बच्चों समेत आ जाती हैं। खालिद भाई वहीं आकर खाना वगैरह खा लेते हैं। निमरा की तो माशाल्लाह 4-4 नंदे हैं। और तुम्हारी? वो चुप सी हो गई। हमज़ा ने दोबारा किताब खोल ली। बोले ना हमज़ा। इसने दोबारा कमर कसी। क्या बोलूँ भाई, तुम क्या चाहती हो? मैं अपने भाई की शादी की तैयारी में हिस्सा लेना चाहती हूँ ना, वो तो उनकी। देखो किंसा, मेरी बात गौर से सुनो। इसने फिर किताब बंद की। तुम्हारी बहनें हो सकता है अपनी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह सेट हों, यूँ रोज़ रोज़ मैके में रुकना उनके लिए मुश्किलात का बाइस ना बनता हो। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब इस घर में तुम्हारी क्या जगह है। ये बात ठीक है, तुम्हारे आने से कबल भी इस घर का निज़ाम चलता था, लेकिन बहरहाल अब तुम यहाँ आ चुकी हो, इस घर में तुम्हारी जगह बन चुकी है। लाजमन अब तुम्हारे जाने से सारी रूटीन गड़बड़ हो जाती है। मैं गैर इरादी तौर पर अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप चुका हूँ, और इन्हें वापस निभाना मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। मुझे अब कतई याद नहीं रहता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, खाना किस वक्त पकना है, अब्बा जी की दवाई का टाइम क्या है। ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं, और तुम्हारी यूँ महीना भर के लिए घर से चले जाने से मैं बेहद डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस घर में सिर्फ एक खादमा की हैसियत से लाई गई हूँ। वो तल्ख हो गई। किंजा? वो बेहद हैरानी से बोला। और नहीं तो क्या, मैं करती ही क्या हूँ इस घर में सिवाय काम के। हर बीवी अपने शौहर के घर में क्या करती है। हमज़ा को शदीद गुस्सा है। क्या ये सिर्फ मेरा घर है, तुम्हारा नहीं है? फिर तुम आखिर करना क्या चाहती हो, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई इन्जॉयमेंट नहीं, हर वक्त कामों में जुटी रहती हो। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बाहर आइसक्रीम खिला देता हूँ, लेकिन किंसा,
मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। इसने दोबारा किताब खोल ली। मुझे बहरहाल अपने अम्मी के यहाँ जाना है। किंजा भी ज़िद पर अड़ गई। बुरहान भाई की शादी तक? ओके जाओ, बेनियाजी से बोला। आप छोड़ने नहीं जाएंगे? मेरे पास फजूलियात के लिए टाइम नहीं है। मैं न तुम्हें छोड़ने जाऊँगा न लेने। तुम शौक़ से जाओ और जब तक मर्ज़ी हो वहाँ रहो। दिल भर जाए सैर व तफरी से तो आ जाना। इसने मज़ीद इंतज़ार नहीं किया, अपने कपड़े बैग में भरे टैक्सी में बैठ कर घर आ गई। किंजा? हुमा वहीं थी। इसे देखते ही लिपट गई। हमज़ा नहीं आया? अम्मी ने बारीक बीनी से इसके चेहरे का मुशाहिदा किया। वो बिज़ी थे अम्मी। इसने फ़ौरन चेहरे पर मुस्कुराहट का नकाब ओढ़ा। मैंने कहा आप तकलीफ़ ना करें, मैं रिक्शा वगैरह कर लूँगी। इजाज़त दे दी रहने की? अपिया बोली। बिल्कुल। वो फ़ौरन बोली। कहने लगे जब तक शादी ना हो जाए वहीं रहना, काम वगैरह में हाथ बटाना। लाखों में एक है मेरा दामाद। अम्मी मुस्कुराई। जी हाँ, जले दिल से मजबूरन बोली। फिर नहाए तनदही से बुरहान भाई की शादी की तैयारियां होने लगी। इन्हीं तैयारियों में से वक्त निकाल कर इसे हुमा के साथ भी ताउन करना पड़ता था। इसकी शादी की तैयारियों में हुमा का बेहद हिस्सा था। फिर यूँ इसे पता ही ना चला शादी का दिन आ पहुँचा। बड़े एहतमाम से तैयार होकर वो ज़ेवर पहनने लगी। सबसे पहले हाथ में आने वाला डब्बा इन्हीं झुमकियों का था जो इसे हमज़ा ने शादी पर दी थी। इसने झुमकियाँ निकाल कर पहन ली। हैरत है, मैंने आज तक पहना ही नहीं इतनी खूबसूरत झुमकियों को, वो ख़ुद से बोली। तैयार होकर वो बाहर निकली तो सबसे पहले इसकी निगाह हमज़ा पर गई। 3 पीस सूट में बुरहान भाई के साथ हंसता हुआ हमज़ा इसे इस वक्त बेहद अच्छा लगा। यूँ भी इसने काफ़ी दिन बाद इसे देखा था। हमज़ा की निगाह इस पर गई। दूसरे लम्हे इसने निगाह हटा ली। किंजा चोर सी बन गई। बुरहान भाई ने बगौर इसको देखा मजबूरन इसे पास आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान भाई को जिताने के लिए इसने हमज़ा को मुखातिब किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। अब्बा जी नहीं आए? इसने बात बढ़ाई। हालांकि ख़बर थी वो कहीं आते जाते नहीं थे। वो कहाँ निकलते हैं घर से। हमज़ा की निगाह मुसलसल इधर उधर तवाफ़ कर रही थी, जैसे कस्तन इसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहा हो। जी। इसने हौले से बस इतना ही कहा और वहाँ से हट गई। शादी में मुसलसल अपने आप को मसरूफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश करती रही। हमज़ा यार, ये ज़रा कैमरा तो संभाल लो। खालिद भाई ने कैमरा इसकी जानिब बढ़ाया। बस किंजा, अब हर तस्वीर में तू ही आएगी। हुमा ने झुक कर सरगोशी की बेख्तियार हंस दी। हमज़ा ने हंसी की आवाज़ पर इसकी जानिब देखा, फिर चंद लम्हे बगौर देखता रहा। किंजा, हमज़ा भाई तुझे घूर रहे हैं। हुमा ने इसे इत्तला दी। झूठ ना बोल, वो झुंझलाई। देख तक तो रहे नहीं हैं, घूरेंगे वो। सच, ईमान से, अभी तक महव हैं तेरे सरापे में। हुमा के नखियों से मुसलसल वहीं देख रही थी। तस्दीक के लिए इसने झट हमज़ा को देखा। वाकई उसे अभी तक देख रहा था। इसने सटपटाकर पीठ मोड़ ली। लो भला, पीठ क्यों मोड़ी? हुमा हैरान हुई। तेरे शौहर हैं, कोई मंगेतर तो नहीं जो तू शर्मा रही है? शर्मा नहीं रही, नखरा दिखा रही हूँ। वो हंसने लगी। बाय द वे, शौहर से शर्माना जुर्म है। पता नहीं, हुमा सादगी से बोली। मैं दरअसल मंगेतर से भी नहीं शर्माती, इसीलिए कह रही हूँ। शादी के हंगामे सर्द हुए तो एक एक करके सब ने घर की राह ली। किंजा, तुमने कब जाना है? निमरा सामान पैक करते हुए बोली। तुम्हारा तो घर चलता ही तुम्हारे दम से है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो घबरा सी गई। हमज़ा को तो आदत है सारा काम कर लेने की। किंजा, तुम्हारी कुछ खटपट तो नहीं होगी घर में? अम्मी ने इसे देखा। नहीं तो अम्मी जी, ये क्यों सोचा आपने? इतने दिन की इजाज़त दे कैसे दी इसने? फिर 2 दिन गुजर गए शादी को, लेने भी नहीं आया। उन्होंने शक का इजहार किया। तो इजाज़त कैसे नहीं देते भला? अकलौते भाई की शादी थी मेरे। कौन से 8-10 भाई हैं जिनकी रोज़ रोज़ शादी होगी? फिर मैंने खुद ही कहा था मैं फ़ोन करके बुलवा लूँगी जब आना होगा। अच्छा तो कर दो फ़ोन। वो उठते हुए बोली। तुम्हारे घर में भी तो ज़रूरत होगी तुम्हारी। जी अच्छा, आहिस्तगी से यही कह सकी। फिर चाहते हुए भी वो हमज़ा को फ़ोन ना कर सकी। हर बार जब इसका रिसीवर की जानिब हाथ बढ़ता, इसकी आना आड़े आ जाती। शायद आज खुद ही आ जाए। हर बार इस उम्मीद पर रिसीवर वापस रख देती। अम्मी 2-3 मरतबा इस्तफसार कर चुकी थी। हर बार वो कोई बहाना बनाकर टाल देती। अम्मी, उनका फ़ोन ख़राब है, हमज़ा ऑफ़िस में नहीं थे, मैंने पैगाम दे दिया है, शायद आज आ जाएं, वगैरह वगैरह। उस दिन भी बड़ी बेदिली से वो बैठी आसमान तक रही थी जब अम्मी बोली। किंजा, फालतू हो, कुछ कपड़े ही धो लो, काफ़ी दिन से नहीं धोले। जी अच्छा। वो उठ खड़ी हुई। प्लग लगाकर अभी इसने मशीन को छुआ ही था कि इसे ज़ोर का करंट लगा।
एक दिल दोस्त चीख उसके मुंह से निकली। हाथ पकड़कर वो वहीं बैठ गई। चंद लम्हों में इसके अवसान बहाल हुए तो टिप टिप आंसू इसकी आंखों से बहने लगे। उठकर अंदर आ गई। अम्मी जी, मशीन तो करंट लगाती है क्या? अरे करंट लग गया? कब से कह रही हूँ ठीक करवा लो, सुनता ही नहीं कोई। ज़ोर से लगा क्या? वो बेध्यानी से बोली। और नहीं तो क्या, शिकायती अंदाज में बोली। इतनी ज़ोर से चीखी भी तो थी मैं। तुम्हारी तो बचपन की आदत है हर बात में चीखना। अंदर से आते बुरहान भाई मुस्कुराए। मैं समझा कोई काकरोच वगैरह देख लिया होगा। बात कुछ ऐसी ख़ास नहीं थी, लेकिन इस वक्त इसे हमज़ा बेहद याद आया कि शादी के बाद दुनिया में सिर्फ एक शख्स मिजाज आशना रह जाता है। इसने सोचा। सर झटक कर कपड़े धोने चलती। जुमा के रोज़ हिना भाभी के घर बुरहान भाई की दावत थी। वो लोग काफ़ी देर से लौटे तो वहीं लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। हुमा भी वहीं थी। लगता है आज बारिश होगी। अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़कर सहन में आई तो बोली, बैठे ना अम्मी जी। किन्जा बोली, मैं चाय बनाती हूँ। पागल हुई हो? उन्होंने इसे घूरा। 12 बज रहे हैं, सो पढ़कर। अभी से वो परेशान हुई। मैं तो बहुत सोई थी दोपहर में। तो तुम्हारी गलती है। बुरहान भाई मुस्कुराए। चलो भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ओफो बुरहान भाई, बैठे ना। चले मैं लूडो लाती हूँ, खूब इंजॉय करेंगे। लूडो? इस वक्त? हिना भाभी ने आंखें फाड़ी। ये कोई वक्त है खेल का? तो खेल खेलने के लिए वक्त की क्या पाबंदी है? ना भाई, मुझे तो नींद आ रही है। बेरुखी से बोलकर उठ खड़ी हुई। चलें बुरहान? बुरहान भाई फ़ौरन उठ खड़े हुए। लाउंज में वो और हुमा रह गए। अच्छा किन्जा, मैं चलती हूँ। हुमा उठ खड़ी हुई। बैठना हुमा। इसने इसका हाथ खींचा। सच में बहुत सोई थी दोपहर में। अब अकेले में डरूंगी ना। शादी हो गई, तेरा बचपना नहीं गया। इसने आंखें निकाली। कोई किताब पढ़ लेना। हुमा प्लीज़, लजाजत से बोली। रुक जाना थोड़ी देर, फिर बराबर का तो घर है, चली जाना दीवार फांद कर। दरअसल किन्जा, मुर्तज़ा ने फ़ोन करना है। इसने आहिस्ता से असल बात बताई। मैं नहीं पहुंची ना, नाराज़ होकर 10 दिन बात नहीं करेगा। अच्छा, वो आहिस्तगी से बोली। तेरी मर्ज़ी, चल गेट बंद कर ले, मैं कल आऊँगी। अच्छा, खफा तो नहीं है ना? नहीं तो। वो मुस्कुराई। हुमा के जाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके कोई किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। अचानक बिजली कड़की तो ज़ोर से उछली। जाने कब बारिश शुरू हो गई थी। घबरा कर बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद लाउंज में टांगे समेटे बैठी रही। बार बार बादल गरजते, सहम कर रह जाती। कोई किसी का नहीं होता। सारे बेडरूम अंदर से लॉक थे। इसका दिल भर आया। थोड़ी देर में वो सिसकियाँ लेने लगी। और वो हमज़ा साहब गुम होंगे अपनी नींद में। बहुत अजीज़ है ना उन्हें अपनी नींद। बीवी का कोई ख्याल ही नहीं है। फ़ोन की बेल बजी तो इतने ज़ोर से उछली कि पास रखा गुलदान लुढ़क गया। हेलो। इसने बमुश्किल रिसीवर उठाया। किन्जा? दूसरी जानिब हमज़ा की नर्म आवाज़ थी। हमज़ा? इससे बोला ही ना क्या? जाग रही थी ना? मैं जानता था। हौले से हंसा। क्यों किया है फ़ोन? वो इतराई। बंद कर दूँ? नहीं। वो इतनी जल्दी बोली कि हमज़ा बेसाख्ता हंस दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, नाराज़ तो आप हैं। हाँ मैं तो हूँ। वो हंसा। फिर हंस क्यों रहे हैं? जो नाराज़ होता है वो हंसता नहीं है क्या? फिर हंस दिया। अच्छा कसम खाएं, नाराज़ हैं? वो मुस्कुराई। अच्छा बाबा, नहीं हूँ नाराज़, कल आऊँगा लेने। कल नहीं, अभी। अभी? वो हैरान हुआ। 1 बज रहा है, बारिश हो रही है। तो क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। पागलपन नहीं चलेगा किन्जा, मैं बात कर तो रहा हूँ ना। बारिश हो रही है, फ़ोन डेड भी हो सकता है। आ जाए ना। अरे यार, क्या कहेंगे तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वाले तो आप हैं। वो हंसी। फिर ये मेरा मसला है, बस आप आ जाएं। किन्जा, ज़िद मत करो। आप आ रहे हैं या नहीं? इसने आवाज़ में आंसू भरे। उफ खुदाया, पागल गधी हो तुम। आ रहा हूँ। इसने खट से फ़ोन बंद किया और वह रिसीवर थामे बेसाख्ता हंसती चली गई। कितनी पागल थी मैं। वो मेरा मिजाज आशना वहाँ मेरा इंतज़ार करता रहा और मैं यहाँ सुकून ढूंढती रही। एक वही तो है दुनिया में जो आखिरी पल तक का साथी है। वो उठी और अम्मी के कमरे की तरफ चलती। इन्हें काफ़ी दिन से इससे यही शिकायत थी, अपने घर क्यों नहीं जाती। अम्मी को जगाकर इसने बड़े इत्मीनान से झूठ बोला कि हमज़ा को कल अचानक किसी काम से पिंडी जाना है, इसलिए वो अभी से लेने आ रहे हैं। थोड़ी देर में बाहर हारन बजा और वो अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। किन्जा? वो गुस्से में था। तुम बेजा ज़िदे करना छोड़ दो। मैं बेजा ज़िदे करती हूँ? वो हंसी। बिल्कुल। इसने गाड़ी आगे बढ़ाई। पता है क्यों करती हूँ? वो हंसी। क्यों?
ایک ہی تو شخص ہے دنیا میں جو میری تمام ضدیں پوری کر سکتا ہے. یہ میں جانتی ہوں. وہی ایک ہے میرا مزاج آشنا. اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی اور زور زور سے ہنسنے لگی. حمزہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا. یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. اجازت چاہتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.